हम चाहते हैं कि बहुत जल्द फास्ट हम थोड़ी इंट्रोडक्शन कर लें, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट इधर है, तो हमको लगता है कि थोड़े शायद जानते होंगे एक दूसरे को, लेकिन न भी जानते हो, तो खास करके जो हमारे गेस्ट है उनकी पहली बार जो आए हैं तो उनकी इंट्रोडक्शन ना कर लेते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन। सिद्धार्थ मिश्रा। हाँ जी, स्माइल। मेरा नाम सिद्धार्थ शाह है। मैं यूएस में लॉस एंजलिस में रहता हूँ और ओएसिस की जर्नी से, स्टार्टिंग से, फैमिली से, इन्वॉल्वमेंट से उनका परिचय है। सो बीच में 10-15 साल ऐसे गए कि there was no what do you call it, in touch in that, but अभी लास्ट 3 साल से वापस जर्नी शुरू हुई है to rediscover Oasis, and I'm excited to know what's happening here, and happy to know the progress, and I want to know more about them and what the challenges and things like that. So we decided to spend 2 days here and with Shiva's invitation, and thank you so much for having us here. My wife is here, and I think and we have a very special friend, Rohit Bhai and Rita Bhai and word before Rohit Bhai says anything. सिद्धार्थ भाई का जो फैमिली है, उनके पेरेंट्स है, पूरे फैमिली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, खास करके ओएसिस के जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे उसमें सब तरह से, एक तरह से नहीं बट वी कैन से फिजिकली एज वॉलंटियर्स, सब तरह की हेल्प की है उन्होंने, सपोर्ट दिया है जब सपोर्ट नहीं था तब सपोर्ट करने वाले लोग हैं। सो जो बुनियादी जो पत्थर होते हैं रखने वाले, उनमें उनका पूरा फैमिली, नॉट जस्ट हिम बट हिज होल फैमिली हैज ट्रेमेंडस, दे लव्ड अस ए लॉट, देयर पेरेंट्स, सो वी आर वेरी gratefully remembering that. Yes. मेरा नाम रोहित दोषी है, मैं भी लॉस एंजलिस से आ रहा हूँ और मैं सिद्धार्थ का बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ। हमारी पहचान 3 जनरेशन, ऑलमोस्ट 4 जनरेशन की चल रही है। We are glad to be here, very delighted to see your program and wishing you the very best. And of course we'll be supporting you and all different sides, of course. My name is Rita Dose. I'm his wife, and of course we came here with Siddharth Bhai's suggestion and thoroughly enjoying the program, to see the energy in the kids and what they are doing. So we are very glad to be here. Thank you. Hi, I'm Preeti Shah and Siddharth's wife. So happy to be here. Always ready to support Oasis. I think I will talk about them, Siddharth Bhai ne baat kari. Our programs in US, that is how we met Preeti Ben for the first time when we went to LA for our US programs. And जैसे इन्होंने उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया, वैसे प्रीति बेन I think supported us and helped us, like, I mean, so that we don't miss our family, because इतना आसान नहीं था वहाँ पे रहना. She took care of us like a mother or elder sister, and इतने साल हो गए, मगर I said those days I will never forget, because जब वक्त कोई होता नहीं है हेल्प करने, तब जब कोई हेल्प करता है, जब लोग जानते नहीं होते, तब लोग जब हमें हेल्प करते हैं, they are very important for us and it matters to us a lot. Thank you. I am Mir Gulzar from Kashmir. I'm principal there. I have been coming here for the last 3 years. Attached with this cause rather. I always enjoy coming over here. Thank you. Tushar Dayal. I belong to a group of companies which is familiar with Oasis for a very long time, and my familiarity has been confined to books so far, which I read diligently and have enjoyed them. I've been delayed in coming here. This is my first Oasis visit for familiarity. Notwithstanding that I spend substantial time for not-for-profits, apart from any corporate work that I do. Whatever is the delay, I have more than made up
in Oasis vegan treats, because that is one initiative where I have been a customer from day one. So I'm delighted to be here and would be happy to contribute and continue our association, build further on it. Dushyant Ashtekar. I'm coming from Pune. I belong to an organization named Borderless World Foundation, founded by Mr. Atik Kadam. I am a retired naval officer and associated with this organization for last 10 years, actively working for last 1 year. I look after the special projects like ambulances, school for the rehabilitation. As far as OS is concerned, I am first time here, but I actually have no words to describe the serenity, the spiritual involvement, and the charged atmosphere here. I think I had to learn a lot of things from you. Thank you. We'll keep limited only for the first timer guests, जो seniors है जो उनको. हेलो नमस्कार, मैं प्रतिमा सोनी गांधीधाम कच्छ से हूँ. इसी से अभी जुड़ी हूँ मैं जगदीश पावरा नॉर्थ गुजरात पाटन से हूँ. विद्या भारती नाम का जो संगठन शिक्षा में कार्य करता है उसकी प्रांत की टीम से जुड़ा हुआ हूँ. मेरा नाम ज्योति है. मैं आतापी सेवा फाउंडेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. आतापी संस्था जम्बूसर और अंकलेश्वर भरूच के 2 ब्लॉक्स हैं. उसमें जो समुदाय स्थित संगठनों और उसका समुदाय स्थित नेतृत्व है उसको लेके और ग्राम विकास की कामगिरी में जुड़ा हुआ है. एंड वी आर हियर टू एक्सप्लोर द सिनर्जीज. और ओएसिस के साथ पहचान बहुत पुरानी है. मैं कॉलेज में पढ़ती थी और ओएसिस वाज वन ऑफ द अल्टरनेटिव फॉर अस स्टूडेंट्स जो लीडरशिप की बात करता था उस वक्त. जिंदगी कहाँ ले आती है Yes. Yeah, please, sir. मेरा नाम दीपक गोयल है. मैं उड़ीसा से आया हूँ. मैं एक कॉलेज चलाता हूँ, इंपीरियल कॉलेज. मुझे ओएसिस के बारे में उदय भाई जी ने बताया था, तो मैं रोक नहीं पाया अपने आप को. और 3 महीना पहले मैं विज़िट किया था यहाँ पे देखने के लिए कि क्या करते हैं क्या नहीं. मुझे थोड़ी बहुत समझ में आई कि 2 घंटे के अंदर इतनी सारी बातें हो गई कि मेरे ऊपर से चली गई. तो मैं बोला भी उदय भाई को बहुत सारा कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आया. तो उन्होंने बोला था कि जनवरी में ऐसा एक एनुअल रिट्रीट होता है, आप ज़रूर आइएगा. तो शायद मैं टाल देता. तो मैं जब आया था शिवा बहन से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी. उस टाइम शिवा बहन बाहर थी. तो हम दोनों के बीच में मेल एक्सचेंज बहुत सारी हुई है, 10-15. और मैं मानता हूँ कि शिवा बहन के जो वर्ड्स थे मेल के दौरान वो मुझे खींच के ले आए कि मैं इसको मिस ना करूँ. एंड मैं आके रियली सरप्राइज्ड कि आप एक बहुत डिसरप्टिव चीज़ें कर रहे हैं. आजकल इंडस्ट्री में बोला जाता है डिसरप्टिव होना चाहिए. आप एक यूथ को चेंजेस लाने में बहुत बड़ी डिसरप्टिव, बहुत हिम्मत का काम है. एंड यू आर सक्सेसफुल. इट्स रियली ग्रेट वर्क बीइंग डन बाय ओएसिस. थैंक यू. गुड इवनिंग एवरीबडी. शैलेश पाटिल फ्रॉम सूरत. मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ और परसों जब निकले तब भैरू बहन से बात हुई थी. तो रास्ते में मैं सोच रहा गाड़ी में कि कैसी जगह होगी, पहली बार आया हूँ. लेकिन पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, आज तीसरा दिन हो गया. सर से मैं बात कर रहा, 3 दिन कहाँ चले गए मुझे मालूम नहीं पड़ा. और हम लोग टीचर लोग एजुकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को कैसा एजुकेशन देना चाहिए वो यहाँ से सीखने को मिला है. मेरा नाम हितेश पटेल है. मैं नवसारी से हूँ और ओएसिस में मैं ज्योतिर्दर अभियान से जुड़ा हूँ. मेरा नाम बेला जोशी, नवसारी से ज्योतिर्दर से जुड़ी हुई 2 साल हुए. नहीं, आपको तो करना इंट्रोडक्शन. मोहम्मद अमीन बेग. मैं कश्मीर से हूँ. मैं वहाँ गवर्नमेंट में प्रिंसिपल हूँ और इस ऑर्गेनाइजेशन से मैं 2015 से जुड़ा हुआ हूँ. इस ऑर्गेनाइजेशन पहली चीज़ जो मैंने अट्रैक्ट की इस ऑर्गेनाइजेशन से वो लीडरशिप का कंसेप्ट था. थोड़ी बहुत लीडरशिप थी मेरे पास, लेकिन यहाँ आके उसने थोड़ी सी निखार आई. थैंक यू वेरी मच.
मेरा नाम अनुराग शर्मा, मैं कैवल्य एजुकेशन फाउंडेशन का हूँ, जो पिरामल फाउंडेशन का हिस्सा है। ज़्यादा कंफ्यूजन है दोनों नाम मैं भी नहीं समझ पाया हूँ, बट तो मेरी टीम भी आई हुई है, 3-4 लोग हैं। आई डोंट नो मैं आत्मजा को बोल सकता हूँ कि नहीं हमारी टीम में है, आई थिंक अभी तो है फिलहाल, गांधी फेलो हैं। But I'm here to explore, you know, what OASIS is all about, and it's been a lot of fun and a lot of learning. Thank you. अस्सलाम वालेकुम to all of you. मेरा नाम आशिक हुसैन पाल, मैं श्रीनगर से 125 किलोमीटर दूर रहता हूँ, फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट में, उसको कुपवाड़ा कहते हैं। Presently, I am principal at +2 level. I am looking after 4 more schools at +2 level. One is situated at the zero line of this border, zero line. इसके अलावा मुझे जोन का भी एडिशनल चार्ज है। वहाँ पर जोन में छोटे छोटे एलिमेंट्री लेवल के स्कूल होते हैं, 197 स्कूल मेरे जोन में आ जाते हैं। तो बहुत बड़ा काम था, लेकिन गुलजार जी ने मुझे थोड़ा सा एक दफ़ा बताया कि वहाँ पर लीडरशिप का प्रोग्राम, तो मैंने उसको कहा मुझे आना ही आना है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन यहाँ मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैंने क्या सीखा यहाँ पर, क्या पाया यहाँ पर, बल्कि मैंने एक प्रोग्राम में अपील भी की OASIS से कि ज्योतिदर जैसा प्रोग्राम मेरे उस्तादों को ज़रूरत है, तो ऐसे प्रोग्राम वहाँ भी कंडक्ट करें। मेरा नाम रेणुकाबेन पटेल, मैं एक बार OASIS का प्रोग्राम फॉलो किया था, दूसरी बार खींच के यहाँ पे लाया। मेरा नाम है अमृत भाई पटेल, आई एम ए रिटायर्ड गवर्नमेंट IAS ऑफिसर, और अभी गुजरात स्टेट फूड कमीशन है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन का इंस्टीट्यूट हर स्टेट में होता है, उसके चेयरमैन के रूप में काम करता हूँ। जैसे मेरी वाइफ ने बताया, रेणुका ने, तो शिबा बहन के साथ में इन आई थिंक 2009 or 10 our chief minister office ministerial staff has been trained by her by doing one workshop। तो उसके बाद में संबंध बना, और माया बहन सोनी जो वो मेरे से काफ़ी फॉलो करती रहती, उन्होंने कई बार बोला लेकिन मालूम नहीं कुछ प्रोग्राम नहीं बन पाया, और इस वक्त भी बड़ी मुश्किल से लेकिन आज आ पाया। मेरे को मेरा सौभाग्य लगता है कि मुझे ये देखने का, नज़दीक से समझने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। So I think the topic तो बताया गया था कि OASIS about questions and queries। तो खास करके ये सेशन नए दोस्तों के लिए है, नए जो भी मित्र आए हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, खास करके जानने के लिए, समझने के लिए, और जो लोग ने 4 दिनों का इन्वेस्ट, मैंने इतना आसान नहीं था, मुझे पता है कि हर जगह से मुझे ये रिक्वेस्ट आती थी कि 1 दिन बाद आए, 2 दिन पहले आए, कुछ कर सकते इधर उधर, और आई अपोलोजाइज अगर हमने थोड़ी दिक्कत देके भी आपको बहुत कहा कि नहीं आना हो तो 4 दिन के लिए आइए, क्योंकि तो ही मतलब रहता है। एंड आई थिंक यू ऑनर्ड दैट रिस्पेक्ट, और आप लोग सब उस तरह से आए, मुश्किलों से, अलग अलग जगह से। तो ये आपके अंदर भी बहुत सारे सवाल उठे होंगे, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने देखे होंगे पूरे दिन, 4 दिन में। तो अगर ऐसे जो सवाल है या कोई जानना चाहते हैं अबाउट OASIS, तो हमको लगा, क्योंकि ऐसा स्कोप रिट्रीट में था नहीं कि हम बैकग्राउंड के बारे में कुछ बात कर पाए, सिर्फ आपको ये झलक मिलती है और एक स्पिरिट का एहसास होता है कि कुछ है यहाँ पे, वो एक अंदाज़ा आता है, कुछ महसूस कर सकते हैं। सो बाय सम चांस ये सेशन डिज़ाइन हो गया, तो आई थिंक लेट अस मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट, कि आप खास करके द फर्स्ट टाइमर्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, you want to know anything which is important for you, so we'll keep it. So I'm opening the floor to the audience. May I? That was my personal introduction. Now it's my organization. My only request from
Oasis is that what Oasis can do for the girls, particularly there, for their, I mean, because the last 3 days we have been experiencing this here. It's a wonderful thing, and wonderful in the sense that I can see wonder happening here right now. Today's session was there, so can we do it there? Thank you. Yeah, it will be our honor to do that. In fact, मैं ये साफ कर लूँ कि हमने जिन लोगों को इधर बुलाया है तो मकसद यही है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये कहाँ कहाँ पर है और ये बहुत एक उम्दा चीज़ है, वो तो आपको पता चल रही है। तो हम बिल्कुल ये करना चाहते हैं बच्चियों के, आपने सामर्थ्य, शायद आप थे वहाँ पे, सामर्थ्य का हमारा जो हुआ था, सो हम सामर्थ्य का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे और हमारा विजन ऐसा होगा कि सब बच्चियों के हम जो हमारे कॉन्फिडेंस बूस्टिंग वगैरह जो प्रोग्राम है वो सब करवाएंगे। साथ साथ में हम लीडरशिप भी डेवलप करेंगे और हम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं कि 2-4 साल में हम कुछ फैसिलिटेटर्स आपके अंदर से ही तैयार करेंगे और आप इंडिपेंडेंटली वो इसकी सब चीज़ें एज पार्ट ऑफ कल्चर कर सके, ऐसा हम करने की कोशिश करेंगे। And also invite, since you're going to be free now, Yeah. to visit our home. Oh yeah, sure. You don't. I'm going to impose myself. You'll find it very difficult to get rid of me. लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मिस्टर कदम और बहुत बढ़िया, and we'll be very happy to. ये हमारा मकसद यही है कि कैसे हम बच्चियों को बचा सके. So, that's it. Thank you very much. Yeah. Yes, Siddharth. So we heard all the programs, some of the information, but being in both of you are here, so might as well ask, what are the challenges you see? So you see bright future for OSS, Yeah. but what are the challenges to get there? So that we understand your perspective and see what are some of the things that as an outsider can help out or can understand. I think this is a beautiful question, and आप इसका जवाब समझेंगे तो ही ओएसिस को भी समझ पाएंगे कि क्या होता है कि कोई बहुत अच्छी चीज़ होती है तो एक हम सबको एक इच्छा होती है, लोभ होता है कि कैसे वो एक्सपांड हो, नेशनली एक्सपांड हो, इंटरनेशनली एक्सपांड हो, क्योंकि ये तो हर जगह की ज़रूरत है, हर भारत की ही नहीं, बाहर सब, ये तो जो चरित्र की बात है वो तो सब जगह की ज़रूरत है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि हमारी जो चीज़ें होती है, हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनके फैसिलिटेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हम ओवरनाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कोई फिजिकल कोई चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी हो तो इट इज़ अ मैटर ऑफ लॉजिस्टिक्स, कि आप मैनेजमेंट वगैरह प्लान करके रिसोर्सेज करके आप कर लीजिए। तो ये ओएसिस में ये ऐसा तुरंत नहीं हो सकता है। सो ओएसिस का काम बढ़ाने के लिए हमारे पास 2 स्ट्रेटेजी है। एक स्ट्रेटेजी ये है कि ये जो बच्चे हैं या जो हमारे पास प्रिंसिपल्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, वो थोड़ा अनुभव करते हैं हमारे कल्चर का, हमारे प्रोग्राम्स में से गुजरते हैं, खुद एक एक्सपीरियंस करते हैं, और फिर हम उनको तराश के, उनका कमिटमेंट, उनकी इंटीग्रिटी देख के, बहुत सोच समझ के हम उनको कोई भी प्रोग्राम के फैसिलिटेटर के तौर पे अपॉर्चुनिटी देते हैं। सो दे हैव टू लीव देयर लाइफ विथ सम लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, सम लेवल ऑफ अवेयरनेस, तो ही वो मेंटर करके दूसरे लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी अपनी मंजिल तय की है, जैसे आप लोग हैं फॉर एग्जांपल, तो भले ओएसिस के प्रोग्राम से आप ना गुजरे हो, लेकिन देयर आर मैनी पीपल हु लर्न बाय themselves with different ways and they are mature enough to understand, sensitive enough to understand कि ये क्या है। तो वो तैयार है, उनको मैच्योरिटी के प्रोसेस में से ले जाने की जरूरत नहीं है जैसी ये बच्चों को होती है। सो वी आर ऑल्सो इन सर्च ऑफ सच पीपल। तो अगर उनको छू जाता है कि नहीं मुझे भी ये काम करना है, तो ओनली थिंग दैट दे हैव टू डू इज गेट देम एक्वेंटेड बाय द प्रोसेसेस दैट वी हैव डिजाइन। सो दे स्टिल हैव टू अंडरगो द प्रोग्राम, बट नॉट एज ए लर्नर बट एज ए विटनेस टू अंडरस्टैंड कि क्या डिजाइन है, वो साइको स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्या करते हैं हम बच्चों के साथ, कैसे करते हैं। तो एक बार वो देख लेते हैं, देन दे आर मैच्योर इनफ टू डू इट इन देयर ओन वे। सो हमारी सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि ये जो मेंटर्स है, हमारे जो फैसिलिटेटर्स कहते हैं, वो हम कैसे जल्दी तैयार करें, जिनका कोई शॉर्टकट नहीं है। एंड वी आर वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि हम कोई
ऐसी जल्दी में नहीं है कि हम हमारी प्रोग्राम की जो क्वालिटी है, जो चार्म है, उसको डाइल्यूट करके जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग एम्बिशियस ये कर लो, वो कर लो, दूसरी ओएसिस वैली बना लो, तीसरा कर लो, वो हम करने वाले नहीं हैं। जितना करेंगे उतना ठीक ठाक करेंगे। सो द मेजर चैलेंज इज टू हैव दिस फैसिलिटेटर्स एंड फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द ज्योतिर्दय प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में अभी जो प्रिंसिपल्स है उनमें से ही कई लोगों ने फैसिलिटेट की। वी आर ट्राइंग टू प्रमोट एज फास्ट एज पॉसिबल कि जैसे वो तैयार हो जाते हैं उनको हम तुरंत प्रमोट करते हैं एज ए फैसिलिटेटर एंड वी स्टार्ट डूइंग द प्रोग्राम। अभी आपने देखा कि मैंने इनको मुझे पता ही हमें करना ही है काम, नहीं बोला होता तो हम सामने से कहते हमारी बच्चियां है, कोई पढ़ाई नहीं है, लेकिन हमारा टारगेट ये रहता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में से ही चुन के लीडरशिप को तैयार करके कैसे जल्दी जल्दी फैसिलिटेट करें। सो वो भी देन दे कैन कैरी ऑन इंडिपेंडेंटली एंड देन वी कैन कीप ऑन एडिंग वैल्यू एडिशन करते रहते हैं, प्रोग्राम्स अलग अलग करते रहेंगे। तो सबसे बड़ी हमारी चैलेंज ये रही है कि कितने जल्दी हम ये मेंटर्स तैयार करें, और ये आसान बात नहीं है क्योंकि उनकी फिलॉसफी क्या है, वो कितने सेल्फलेस है, वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं, वो अपनी रिलेशनशिप्स में कैसे पेश आते हैं, ये सब कुछ हमको तराशना पड़ता है। बिकॉज वी हैव ए प्रिंसिपल दैट वी कैन टीच व्हाट वी नो बट वी कैन प्रोड्यूस ओनली व्हाट वी आर। सो जब तक हम खुद नहीं बनते हैं तो हम दूसरों को बना नहीं सकते। दैट इज द ओनली चैलेंज वी हैव। Otherwise, we have never faced, we are not bothered about any other thing. And of course, I would like to add one more thing जो अभी हम करने की कोशिश करें। बहुत बड़ा हैंडीकैप है हमारा आज कि हमारा डिजिटाइजेशन अभी थोड़ा पुअर है, तो वो अभी एक प्रोसेस में है, पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है और बहुत जल्दी हम उसको ख़त्म करेंगे। तो उसकी ऐप हो जाएगी, सब कनेक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ब्लॉग्स वगैरह आ रहे हैं, थोड़े पिछड़े हुए हैं, इसलिए मैं ये नई पीढ़ी को ज़्यादा पुश भी दे रहा हूँ ताकि जो हमारी जो लिमिटेशन रह गई है वो उन लोग पूरी कर सके। These are the two fronts on which we are really fighting hard. But what so जो challenge mentorship yes. So what are the steps? I mean, these are the programs or more? What are the steps you are taking? We have a strategy. ये ऐसा होता है कि हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो जैसे ज्योतिर्दय का प्रोग्राम हुआ, एक बैच हुई 30 लोगों की, तो तुरंत हमारे पास लिस्ट आ जाती है। फिर हम उनको तुरंत इनवाइट करते हैं लाइव कैंप विटनेस करने के लिए, लेने के लिए। तो हर एक प्रोग्राम के जितने भी प्रोग्राम है उनके सबकी फैसिलिटेटर्स ट्रेनिंग चलती रहती है। तो एक के बाद एक बेसिक प्रोग्राम करते हैं, देन दे आर अट्रैक्टेड, तो फिर उसके ऊपर का प्रोग्राम करते हैं, वैसे वैसे करते रहते हैं और चलता रहता है। इट्स ऑल कनेक्टेड चीज़ें है, पूरा एक लूप है पूरा जो चलता रहता है। एंड देन इट डिपेंड्स अपॉन देयर प्रायोरिटी। अगर वो स्टिल काम कर रहे हैं तो कोई साल में 10 दिन देगा, कोई 15 दिन देगा, 20 दिन देगा। तो जितना टाइम उनका होता है, जितना टाइम कमिटमेंट होता है, उसके हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूटिलाइज करके हम सोसाइटी को बेनिफिट कर सकें। जो ट्रैवल नहीं कर सकते उनको लोकल लेवल पे लेते हैं प्रोग्राम। सो वी आर ट्राइंग टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव दैट मेंटर हैविंग बेसिक इंटीग्रिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, तुषार भाई, प्लीज पास ऑन माइक। I want to raise a subject which has not been considered here in this workshop because probably it was not relevant in the total program. And that I want to know a little bit more about the governance structure in OSS. What is the management like, and is there a board of trustees, etc.? Because the social sector in India is under a huge amount of government scrutiny. And none other than the House of Tractors today face a challenge of 10,000 crores of additional tax demand. Their trusts, by virtue of Section 2LA, being denied. So, what is the management structure? What is the governance structure? Who are the people who are taking care of financial planning? What is the capex going to look like? What are the operations expenses? What are the revenue sources? And what kind of a budget and any other deficit that is there? I'm not sure whether this is the right forum to discuss on these, but some of these ideas have occurred to me, and therefore I shared them.
I think if you want, I can address to you personally. But ऐसा कोई जो जैसे we have a structure जो officially formally जो जरूरत थी, management team is there, trust board of trustees जो full timers हैं जो so they are all on the board of trust. वैसे we go on inviting more trustees also. So वो structurally everything is there as it is legally required. That is already there in place. And जैसे accounts और audit का system भी आपको पता है. So everything is there in place. उसमें कोई issue नहीं है. और whatever questions so if you want the answers, accounts, audit, capex जो भी है. So I think the accounts department would be so CFO है Preeti and Vineet would be the right people to answer that. But if your question is addressed to about how we are going to manage whether things are being taken care of, if it is in that line. I think मैं कुछ और बताऊंगा जो वो पूछना चाहते हैं वो. तुषार भाई, there are some 2-3 interesting things that I would like to share with everybody. एक तो ओएसिस में जो ट्रस्टीज है वो कोई भी डेजिग्नेशन से या अपनी उम्र से या ऐसे नहीं हो सकते हैं. Right from the very beginning we have made sure कि जो 24/7 लाइफ कमिटमेंट वाले लोग जो है वही ट्रस्टी हो सकते हैं, irrespective of their age, sex, religion, creed, कुछ भी नहीं. They have to be completely dedicated. So जो लोग कम से कम 5-7 साल जिन्होंने हमारे साथ गुजारे नहीं हो और बहुत अच्छी तरह से अगर हम जानते नहीं हो उनको हम ट्रस्टी नहीं रख सकते हैं. दूसरा कि हमारा जो बहुत अनुभव से हम सीखे हैं कि जो लीगलिटी है वो एथिकलिटी नहीं है. तो लीगल जो चीज़ें होती है वो हम कर लेते हैं, इंश्योर करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है. लेकिन हमारी खुद की बहुत सारी वैल्यूज जो है जो लीगल पीपल डोंट केयर बट वी डू केयर अबाउट दोज थिंग्स. सो उन चीज़ों पे हम बहुत सारा भार रखते हैं. एक्चुअली ये एक टॉपिक ऐसा है कि जिसके पर हम 2-4 घंटे बात कर सकते हैं कि कितनी सारी परेशानियां में से गुजरना पड़ा है. आप सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट से कितनी तकलीफें होती है. जैसे FCRA का सर्टिफिकेट जब हमने लिया था तो बहुत हमारे खुद के बहुत अच्छे वेल विशर्स थे. उन्होंने बोला कि आपको तो ब्राइब देनी ही पड़ेगी, चलेगा ही नहीं. और हमने बोला कि नहीं लेंगे डोनेशन, नहीं लेना पड़ा तो, लेकिन वो हम नहीं करेंगे. और हमने किया. वो बहुत एक्सेप्शनल केस हुआ. वहाँ सत्याग्रह करना पड़ा हमको, 3 दिन रुक के 4 दिन रुक के भूखे प्यासे, लेकिन दिल हिला के और बिना पैसे दिए FCRA का सर्टिफिकेट लेके आए. ऐसी बहुत सारी चीजें. सो लीगलिटी हमारे लिए बहुत छोटी चीज हो गई जो हम पक्का कर लेते हैं. जो ये विनीत भाई है, दे आर वेरी एक्सपर्ट्स, तो they can send you audit reports and you can find out and everything. But we have some values in place. For example, कल मैं शेयर कर रहा था कि शुरुआत से हम जानते हैं कि मैं बहुत I think यंग एज में था तब कुछ राजीव गांधी ने शायद उस वक्त कन्फ्यूज किया था कि 100 रुपीस में से कुछ 10 रुपये परेशानी से पहुंचते हैं तो वो 90-95% तो प्रोसेस में चले जाते हैं. तो आई लर्न कि जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके ओवरहेड्स कम होते हैं. सो वी हैड द आइडियल कि 10% से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. सो वी आर ट्राइंग टू कीप द ओवरहेड्स अराउंड आई थिंक Actually, the actual overheads we had always kept it around 2 to 3%, हाँ. to less than 5%. अगर 10 और जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा और प्रोजेक्ट ओवरहेड सब आते हैं उसके कारण 10 से नीचे रहता है. अदरवाइज आइडियली हमारा 2 to 3% में हम लोग अपने ओवरहेड रखते हैं. हाँ, क्योंकि बहुत सारी वॉलंटरी एफर्ट है, बहुत सारा वॉलंटरी टाइम यूटिलाइज करते हैं बिकॉज वी आर ट्राइंग टू क्रिएट पीपल्स मूवमेंट. सो हम बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू टैप दी पीपल्स एनर्जी. लोग पार्ट टाइम काम करते हैं लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरी जिंदगी देनी है, फुल टाइम काम करना है एंड दे हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स. So we have opened up that thing and we make sure that we pay them quite less than their market value and we honor them. हम honorarium की definition करते हैं कि हम आपको पैसे देते हो आपकी सैलरी के नहीं है, हम हाथ जोड़ के आपको पैसे दे रहे हैं कि आपका घर है उसमें जो इतना हमारा योगदान है, आप काम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में वो नहीं हो सकता है. तो दिस काइंड ऑफ वैल्यूज वी हैव इनकॉर्पोरेटेड. उसकी वजह से 7-8% मैक्सिमम हमारे ओवरहेड्स रहते हैं और हम काम करते हैं. तो बहुत स्लिम और बहुत टाइट और बहुत फिट ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियली. सो आई थिंक these are the interesting things that we would like to share. Otherwise, as Shiva says, because you are from that world, Yeah. we'll be very happy if you can go through the audit reports and if you can have some suggestions or something to implement. We are always there. Frankly, this
thought occurred to me because of chat we had, interaction we had on succession planning. Because when succession planning is a big concern, some of these issues merit attention. I have a question. Who are the persons behind the designing of these contents of various training programs? मैं और शिबा वी आर एक्सलेंट सिनर्जिस्टिक टीम। हमारे सब दोस्तों की, हमारे जो अभी दोस्त देखे आपने जो हम पुराने, हम 30 साल के साथ में, वी आर अ ग्रेट सिनर्जिस्टिक टीम। लेकिन पर्टिकुलरली मैं और शिबा वी आर actually very very complementary, completely different kind of people. So I am the designer. मेरा जो डिज़ाइन करना, बच्चों के साथ इन प्रिंसिपल इंटरव्यू करना, कैसे प्रोसेस करना, फैसिलिटेट कर सके। एंड शिबा इज अ ट्रेमेंडस पीपल पर्सन, सो शी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैसिलिटेटर। और मैं तो कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करता हूँ, फिर मैं 1 या 2 बार कंडक्ट करता हूँ टू मेक श्योर दैट माई थिंग्स आर वर्किंग, देन आई हैंड ओवर इट टू शिबा एंड देन शी हैज फैसिलिटेटेड ट्रेनिंग। तो ये पूरी हमारी इस तरह से टीम चलती है। बट टुडे, ये तो शुरुआत की बात कर रहा हूँ 30 साल से, लेकिन अभी आज हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल सिद्धार्थ इज सिटिंग हियर, ही इज ए बिजनेसमैन। उनकी पूरी एक बिजनेस है, फैक्ट्री है, खुद CEO है, बट ही इज सच एन एक्सलेंट पर्सन, par excellent as far as his heart is concerned as an educator. मैंने आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं जितनी बार देखता हूँ मुझे लगता है कि ये कहाँ फंस गया है बंदा। ही सच अ सुपर। आपको आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जाओगे तो ऐसा दिमाग और ऐसा दिल नहीं मिलेगा आपको जो पूरा एजुकेटर का दिल है उनका। सो वी आर ट्राइंग टू टैप सच पीपल। ही इज ऑल्सो डूइंग वंडरफुल जॉब इन हेल्पिंग अस टू ट्रेन, प्रिपेयर एंड ग्रूम द फैसिलिटेटर्स। तो अभी बहुत सारी बड़ी टीम बन रही है। So, are you following any? Are you following any science or behind this your training content, or it's your own logic? Very difficult to answer you. ये जो है वो हार्ट ऑफ एजुकेशन है और कुछ नहीं है। सब जगह से सीखते हैं। ये हमारा फॉर एग्जांपल ड्रीम इंडिया कैंप जिसको कहते हैं, उसमें गांधीयन फिलोसफी दिखेगी आपको, उसमें समर हिल का दिखेगा, उसमें जे कृष्णमूर्ति का दिखेगा, उसमें श्री अरविंदो का कुछ दिखेगा। हमारी किताबें होती है, वो सब रिलीजियन लीडर्स जो होते हैं अच्छे ओपन माइंडेड, वो बहुत सराहना करते हैं, उनको लगता है कि हमारे रिलीजन में यही है। सो ये ऐसी चीज़ है जो बहुत यूनिवर्सल है चीज़ें, तो यूनिवर्स से आती है और यूनिवर्स से बनती है, ये जवाब है। बट वी आर वेरी ओपन माइंडेड। कई लोग क्रिटिसिज्म करते हैं हमें, मुझे भी करते थे कि आप इंडियन हो और गीता की बात नहीं करते हो, उपनिषद की बात नहीं करते हो, वेद की बात नहीं करते हो, हमेशा फॉरेन ऑथर की उनकी बात करते हो। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि भाई गीता में ही लिखा है कि पूरी दशो दिशा से ज्ञान आना चाहिए, तो कहीं से भी आता है, क्या आपत्ति है? भले घूमघाम के इंडिया से जाके भी अमेरिका से आए तो आता तो है, उसमें क्या दिक्कत है? और ये हकीकत भी है कि आज तक ऐसा हुआ है कि हमारा जो विज्ञान है, ज्ञान है, वो वेस्टर्नर्स होते हैं, ज़्यादा रिसर्च करके पैलेटेबल लैंग्वेज में प्रेजेंट करते हैं। तो हमको उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमको जहाँ से बांटना भी चाहिए, लेना भी चाहिए, आदान प्रदान बॉर्डरलेस चीज़ होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सो वी आर लर्निंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि हमारा जो L3 कोर्स है जो 4 साल का है, 1 साल में 3 बार 3 दिन मिलना होता है, 10 days every year. You will not believe, but it contains the content of the 100 best of the best books in the world. मैरिज पे लीजिए आप, पेरेंटिंग पे लीजिए, टाइम मैनेजमेंट पे, लीडरशिप पे, स्पिरिचुअलिटी पे, you will find the best of the best, greatest of the content, because we believe in learning from every source. You know, that is the response. Yeah. I have a second question, very simple question is, but हम जितना भी सेशंस अटेंड किए सब बच्चों से एक ही क्वेश्चन वो लोग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि we have to take permission from the principal for the Mishal program or any kind of things, and I think it's widely being accepted in Gujarat particularly. So
एक रीज़न आपकी हो सकती है कि वो आप नहीं कर रहे होंगे शायद बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, बट मेरा मानना है कि अगर मिसाल प्रोग्राम को बहुत वाइडली करना है तो वो जो टाइम ख़राब हो रहा है बच्चों का परमिशन लेने में, why not to get it approved by the government and do it, make it an order for the schools, so that kids will not lose time in this unproductive work. They can have their confidence building or bargaining skills a little bit. आपके साथ आराम से बात करूंगा, आप बहुत लंबा रूट बता रहे हैं, शॉर्टकट नहीं बता रहे हैं और वो कितना लंबा है आपको अंदाजा नहीं है उसका। Thank you. But it's a well-meaning question and we appreciate that. We are trying to do that as much as possible, but our strategy is never to rely on government. We have plan B, plan C. हम सीधा जितना हो सके इतना करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। I think शिवा ने पूछा है, लेकिन मैं क्लैरिफाई कर लेता हूँ कि आखिरी इवनिंग है तो थोड़ा हम ओपन एंडेड रखते हैं, स्ट्रेच करते हैं, so that we justify the special case today. Okay? Yes. मेरा एक क्वेश्चन है कि कल जो वीगन फूड के बारे में मैंने यहाँ सुना, क्या वो मतलब मैं ये कह सकूँ कि उसमें किसी न्यूट्रिशनिस्ट होगा उसकी कंसल्टेशन ली गई है कि क्या, या आपने ऐसे ही 1-2 साल में वो तजुर्बा कर लिया? क्योंकि ये तो ह्यूमन लाइफ का सवाल है। मैं ये मानता हूँ कि इसमें ये मतलब लॉन्ग टाइम एक्सपेरिमेंटेशन की ज़रूरत है और ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। तो इसमें आपको कितना समय लगा और क्या आपने उनकी सलाह ली है या नहीं? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत वेल रिसर्च्ड है और दुनिया के टॉप न्यूट्रिशनिस्ट जो है, जो आज लेटेस्ट जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, बहुत साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी भेजेंगे। आप खुद विश्वास मत करना हमारे पर, आप खुद रिसर्च करेंगे तो आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप अंदर जाएंगे तो और साइंटिफिक एविडेंस के साथ से देखो, ये सी चीज तो पहले भी थी, लेकिन 30 साल से अभी बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, उसकी डिसीजेस पे क्या असर है, एथिकल एस्पेक्ट्स क्या है, बहुत सारी चीज हो रही है, तो मिल जाएगा आपको, लेकिन बहुत साउंड रिसर्च पे बेस्ड है। कोई इमोशनल होकर अपने डिसीजन नहीं ले लिए। नहीं, आपको ऐसी गलतफहमी नहीं है कि हमने इन्वेंट किया है, ये हमारा नहीं है, ये ऑलरेडी किया हुआ, हमने उसको एक्सेप्ट किया, हमने उसको यूज करना है। We are followers. But we have doctors, हमारी टीम में डॉक्टर्स भी हैं जिनको भी हम कहते हैं, मशवरा करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, बराबर तराशते हैं हम, एंड वी आर कन्विंस्ड कि ये बहुत सही चीज है। दैट इज व्हाई वी आर फॉलोइंग इट। ये जो वेगन फूड का इनिशिएटिव जो लिया है ओएसिस ने, इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिशिएटिव। बहुत ये अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है कि जो डेवलपमेंट सेक्टर है उसको देख रहा है। जहाँ भी कमर्शियल सेक्टर इसकी लीडरशिप नहीं ले रहा है, वो लीडरशिप ओएसिस से आ रही है। तो ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है, बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे सबके लिए। और इसमें जो संशोधन हुआ है, जो बातें हुई है, और जो अपार्ट फ्रॉम फूड और अपार्ट फ्रॉम हेल्थ के एस्पेक्ट्स से, हेल्थ में तो उसके लाभ है, उसमें कोई दो मत नहीं हो सकते, मगर एनवायरमेंटली भी उसका जो योगदान है वो बहुत बड़ा महान योगदान है वेगन फूड का। तो जो क्लाइमेट चेंज में तक उसका एक रेलेवेंस रहेगा कि उसके क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आ सकती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भविष्य में ऐसा एक समय आएगा कि ओएसिस की लीडरशिप में ये जो 4 दिन की जो ये वर्कशॉप हुई है वो सिर्फ वेगन पे होगी और हम सारे लोग आएंगे और उसका लाभ लेंगे। तो ये बहुत बड़े साउंड फूटिंग पे है और इसको जितना हो सके सारा प्रोत्साहन हम देंगे तो वो हमारा दायित्व बनता है। इनफैक्ट ये महीने में 2-4 सब शहरों में सेमिनार्स हो रहे हैं हमारे वैगन के, और फॉलोड बाय 8 फरवरी में 21 दिन की हम रिट्रीट कर रहे हैं जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन डिजीज हो, विद गारंटी कि 21 दिन में रिवर्सल होगा हमारी गारंटी के साथ और जिम्मेदारी लेके। और उतना ही नहीं, लेकिन उसी दौरान जो नंदिता शाह है शरण की, जो अभी हमारी बहुत मिले नहीं है,
अभी तक, लेकिन उनकी किताब हमने गुजराती में कर ली। मैंने तुरंत उनको फ़ोन करके बोला कि आपने बहुत पावरफुल किताब लिखी है। शी वॉज वेरी ग्रेटफुल। मैंने बोला आप गुजराती तो भूल ही जाइए, मैं करके ही रहूँगा, लेकिन मैंने बोला मैं वहाँ अटकूंगा नहीं, मैं कोशिश करूँगा, बिकॉज शी डजंट हैव कॉन्टैक्ट्स विद हिंदी पब्लिशर्स एंड शिबा इज़ डूइंग वेरी गुड अबाउट इट। तो मैंने उनको ये भी वादा किया है कि ये हिंदी में तो होगी ही होगी, और फिर देखते हैं कि कितनी लैंग्वेज में भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो वो खुद लेक्चर सर्किट पे भी आ रही है 4 सिटी की, उनकी लेक्चर्स भी हो रही है। सो जनवरी फरवरी में बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो इन वैगन को लेके होने वाले हैं। तो किसी को कोई सवाल हो तो आप वहाँ जा सकते हो। हम ऐसी भी कोशिश करने वाले हैं कि जो इनकी दिन नहीं फाए जिनको, और जो ये किताब जो नंदिता जी पे ऐसा करती है कि किताब पढ़ के आप कोशिश करो, वो महीने के बाद वापस आएगी और आप फिर एक्सपेरिमेंट करके देखो, और जो भी सवाल है उनके वो भी जवाब दे सकती है। सो ये कॉमर्शियल भी नहीं है, दिस हैज टू बी ए मूवमेंट, दिस इज अ वेरी वेरी बिग कॉज। और ये बिल्कुल अच्छी बात, सही बात बताया तुषार जी ने कि एनवायरमेंटल इतना बड़ा इम्पैक्ट है, माने एक डैमेज करता है और एक हेल्प करता है, उतना बड़ा है। एथिकल एस्पेक्ट है, बहुत बहुत स्ट्रांग है, और सोचना पड़ेगा सब लोगों को। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, हाँ जी, कि आपका बहुत सारा योगदान है यहाँ पर, आपने बहुत सारी किताबें लिखी है, लेकिन आप गुजराती में ही क्यों लिखते हैं? कि इसके बरकस इंग्लिश या हिंदी जो है ये अब हम कहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है या पूरे हिंदुस्तान की लैंग्वेज है, तो आप गुजराती पर ही क्यों आपने इत्तेफाक किया है? मुझे बताइए, आपको किताब लिखनी होगी तो आप कौन सी लैंग्वेज में लिखेंगे? मैं तो उर्दू में लिखूंगा। हाँ, तो फिर मैं गुजराती में लिखूंगा। लेकिन हम आपकी भावना समझते हैं, हमें बहुत पेन है कि वो गुजराती से सीमित रहता है, इसलिए शिबा जी ने बहुत लास्ट ईयर मेहनत की है, और बहुत जल्दी हिंदी में आ रही है, बंगाली में भी आ रही है, इंग्लिश भी कर रहे हैं हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी उर्दू में हो, क्योंकि इतना अच्छा अप्रिशिएशन है कश्मीर में। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोई उसमें हम कोई चीज़ देखते नहीं है, कोई जहाँ पैसे की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, कहीं जो पब्लिशर से बात करते हैं तो उसमें वो तो बात भी नहीं आती। हमारी यही इच्छा है कि कितनी जल्दी हो। तो किसने बोला था उर्दू में सहाय करने का? उर्दू में तो तैयारी है, हमको सिर्फ उसकी तर्जुमा करने के लिए भी इंसान, हमको अगर मिल जाए कोई अच्छी तरह से तो हम। आप लोग ये ढूंढना शुरू कर दो, हमारी मदद कीजिए। राबे जी ने जैसे एक किताब की ना, हमारी छोटी सी, वैसे अगर कोई देखो बहुत सारी किताबें हैं, सब आप एक हफ्ते में हम दे सकते हैं उर्दू में, अगर आप 100 लोग दे दो तो। वैसी बात है वीरेंद्र भाई जैसे। सो आप हमें ये हेल्प कीजिए कश्मीर से कि जो लैंग्वेज के जानने वाले हो, जो इंग्लिश से या हिंदी से अगर उर्दू कर सके, हाँ, सो देन वी शुड मेक इट अ प्रोजेक्ट। पब्लिशर है मेरे पास जो पब्लिश करके दे दिया, ऑलरेडी है बस। देखो पब्लिशर की कमी नहीं है, हाँ, ट्रांसलेटर चाहिए, और बहुत अच्छे, बहुत उम्दा समझ के करने वाले ट्रांसलेटर चाहिए। कल वीरेंद्र भाई हमारा जो ट्रांसलेशन का सेशन चल रहे थे, तब मैं बोला नहीं, या हिंदी से या अंग्रेजी, हिंदी या इंग्लिश, हाँ, हिंदी या इंग्लिश, क्योंकि हमने गुजराती से ऑलरेडी हिंदी या इंग्लिश में किया हुआ है, तब वो हाँ जी, इंग्लिश में भी किया। आसान हो जाएगा, इंग्लिश से आसान। देखो गुजरात कोई आपको मिल जाए गुजराती से उर्दू करने वाला तो बहुत बढ़िया है। लेकिन नहीं तो हिंदी, हम जानते हैं सब लोग गुजराती नहीं जानते होंगे, नहीं कोई होता भी है, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई इंसान मिल सकता है आपको, लेकिन हम जानते हैं कि वो बहुत नहीं होते हैं, इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश में फटाफट कर रहे हैं ताकि उससे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही। सो ये कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। अपनी जगह पर मैंने सोचा अगर इस मिसाल के साथ साथ कैरियर काउंसलिंग भी दी जाए, एक एडिशन, मेरी सजेशन है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है मेरे यहाँ, जो ये बच्ची, मुझे आईएएस की झलक लग रही है इसमें। अगर इसमें इस्पाक कि आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, उड़ान क्या है, कैसे उड़ान भरोगे आगे, कि कितनी अपॉर्चुनिटीज है डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट फील्ड्स में, बहुत बड़ा योगदान होगा इस मिसाल के साथ साथ, जो मैंने अपनी जगह पे देखा। वो है हमारे अंदर ऑलरेडी, हाँ ऑलरेडी है, हाँ। लेकिन यहाँ जाहिर से नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें दूसरी भी है, हाँ। जैसे आपने कैरियर गाइडेंस बताया, तो बड़ौदा शहर में ही ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज है दूसरे, जो सिर्फ कैरियर गाइडेंस का काम करते हैं, तो उनके साथ हमारा टाई अप है, लेकिन हम नीड बेस्ड करते हैं।
जिन बच्चों कंफ्यूज होते हैं, जिनको पता नहीं होता है, उनको तुरंत हम भेजते हैं, वहाँ काउंसलिंग होता है उनका, फिर आके हमारे साथ भी काउंसलिंग होता है, ये ऑलरेडी हम करते हैं। बच्चों की जो भी जरूरत होती है, मिसाल में प्रॉमिस हमारा ये है कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो भी जरूरत है, वो तो स्टेज तो खाली रिक्रूटमेंट के लिए, उनको जीतने के लिए, लेकिन नहीं जीते होते हैं तो भी जिनकी भी जरूरत होती है वो हमेशा हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। वो टाइप है आपका? हाँ, ये बिल्कुल। और अभी ऐसे लास्ट चीज मैंने थोड़ा मिसिंग देखा है इसमें, ये होना चाहिए। हाँ, तो उसकी हम बात नहीं करते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली जो मिसाल में आ जाते हैं और रिकॉग्नाइज होती है नीड, तो हम वो उसको फुलफिल करते हैं। अभी ऑनलाइन प्रोसेस भी है, जैसे बेंगलोर में जरूरत पड़ी थी, तो ये लोग वापस गुजरात के हैं, तो हमने तरीका निकाला और डिस्टेंस से भी हमने कैरियर काउंसलिंग करवाया, तो वो हम करते रहते। बहुत थैंक यू। ये सब ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आई एम लकी टू हियर टुडे एंड टू सी दैट एक्चुअली आपने जो इसका बीज है वो आपने बोया है और आपके मन में एक विचार है, दृढ़ता है, उसको जीने की बड़ी तमन्ना है और आप जिए, उसके कारण इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना और आपने एक लेवल पर पहुंचा और उसको अभी तो आप काफी साल तक ये चला सकते थे, लेकिन आपने तुरंत ही उसका सक्सेशन प्लान बना दिया और ये इतने यंगस्टर्स को हैंडओवर किया। इट्स अ ग्रेट थिंग एक्चुअली। ये बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं और जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विचारक जो दुनिया बदलना चाहते हैं, आप भी उसमें से ही एक है, मैं ऐसा मानता हूं, जो ये करते हैं, लेकिन पूरे जीवन में इतना जल्दी फास्ट हैंडओवर करना, उनको तैयार करना, ये नहीं कर पाते। तो फर्स्ट तो मैं ये कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, लेकिन मेरी जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने भी काफी इस प्रकार के व्यक्तित्व को पढ़ा है, देखा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को समझा भी हूं जो दुनिया में बहुत बड़े चेंजेस लाए हैं, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम एक्चुअली, क्योंकि आपकी जो मूल ये संकल्पना है उसमें यही बात है कि आप दिया बनते हो तो ही दिया बना सकते हो। आपने जो बताया कि फैसिलिटेटर प्रोड्यूस आप है तो प्रोड्यूस कर सकते हो, इट्स नॉट ए मशीन एक्चुअली। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जो दूसरे भी है, और मैं जो समझता हूँ ओएसिस का, वो तो अब क्योंकि आपका 10-15 साल ही हुआ है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ ये इसका प्रभाव कब बन सकता है, जब इसको 50 साल 60 साल, जब गांधी एक बना तो उसके 60 साल के बाद में उसकी इम्पैक्ट दिखता है। तो ऐसे ही इसकी इम्पैक्ट भी मैं 50-60 साल के बाद में दिखता हूँ, यानी वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट। तो मेरी चिंता ये है कि आपके ऐसी कोई मैकेनिज्म, क्योंकि इसको लंबे दूर तक चलने के लिए, क्योंकि जो मन है वो जो जैसे वो कहते हो परत को साफ करना पड़ता है, इसमें भी रोज साफ करना पड़ता है, अदरवाइज तो वो वही सवाल आके उठता है। ये बच्चे तो आपके प्रतिबिंब बन गए, वो मैं मानता हूँ, लेकिन फ्यूचर में इसकी एक तो कुछ डेली मैकेनिज्म बने मन साफ करने की, या तो साल में एक बार बने, 6 महीने, ऐसा कुछ मैकेनिज्म है या नहीं, एक। और दूसरा मैं जो सोचता हूँ कि ये आप तो विचार के लिए इसके पीछे पड़े हो, हम सब लोग देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हम लोग नहीं हो, आप भी नहीं हो, तभी भी ओएसिस बहुत बड़ा इम्पैक्ट अगले 50-100 साल में कर पाए, इसके लिए आप कुछ सोचा है नहीं? दैट इज माय बेसिक क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया उम्दा सवाल है। बहुत खुश हैं हम कि ऐसी बातें हो रही हैं। पहला सवाल है, उसका सामने मैं प्रश्न कर रहा हूँ आपको कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा कैसे बनता। जैसे हम 10 दोस्त हैं जो हम 30 साल से जो कोर ग्रुप में है अभी, ये 30 साल में हर 3 महीने हम मिलते हैं 2-3 दिन के लिए। उसमें हम एवेल्युएट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सवाल करते हैं। तो ये वो साफ करना कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, कांस्टेंट प्रोसेस है। और ये कल्चर हम इम्बाइब कर रहे हैं
जैसे ही बच्चे होते हैं तो हर महीने 1 दिन 2 दिन उनकी एवेल्युएशन मीटिंग होती है, रिफ्लेक्शन होता है, रिट्रीट कहते हैं हम उनको। ये कॉन्स्टेंटली सब लेवल पे इम्बाइब हुआ है, माने इसमें से कोई बच नहीं सकता। कोई सीधा सीधा काम नहीं कर सकता कि बिजी है, रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे, मेडिटेट नहीं करेंगे तो वो नहीं चलेगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है हमारा, इंट्रोस्पेक्शन, रिफ्लेक्शन, और ये किताबें भी चलती रहती है, वर्कशॉप चलती रहती है। फिर दूसरा क्या है कि हम जल्दी जल्दी बच्चों को भी फैसिलिटेटर बनाते हैं। जैसे काफी सारे बच्चे ऑलरेडी लाइफ कैंप ले चुके हैं, ये सब बच्चे हैं, तो सिखाना भी हमारा कल्चर ऐसा है कि सिखाना भी जिम्मेदारी से होता है, तो उसके लिए भी वो मेहनत करते हैं, उसमें भी उनका रिफ्लेक्शन होता रहता है। सो बहुत सारे लेवल पे शायद लोगों को फरियाद ये हो सकती है कि बहुत सारा रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन कोई ऐसी तो फरियाद बोलेगा भी नहीं कि रिफ्लेक्शन से कोई बच नहीं सकता। वो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है। और दूसरा, आपने बहुत अच्छा सवाल कहा, बहुत ही उम्दा, और ये हमारी अहम चिंता है कि ये हम ना हो तो भी कैसे चलता रहे, क्योंकि हम जानते ही है, जैसे मैं आज ये कहने वाला था कि कोई लोग ऐसा कहेंगे कि 30 साल पहले कुछ बीज बोया था हमने दोस्तों ने कुछ मिलके, तो आज ये पेड़ हुआ है। लेकिन पेड़ भी एक बीज है, उससे जंगल होगा, जंगल के लिए भी कोई बीज चाहिए। तो एक पेड़ है, वो बीज से हुआ है, लेकिन जंगल के लिए तो वो भी बीज है। अब जंगल होगा तो दूसरे भी जंगल बनाने हैं, तो पूरी दुनिया के लिए भी एक जंगल भी एक बीज का ही काम करता है दूसरे जंगल बनाने के लिए। चलता ही रहता है, जो कल बीज था आज पेड़ है, वो कोई तरह से बीज है, ये चलना चाहिए। सो मेरी कोशिश, मैं बहुत साधारण इंसान हूँ, बहुत गांधी जी से पढ़ा, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ हो सकता है नया, कुछ कर सकते हैं हम तो इन लोगों के कंधे पे बैठे हैं। गांधी जी की पूरी विरासत है हमारे पास कि आज कितना सारा हम पढ़ सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि सब जगह से सीख के कुछ नया कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश अभी आज ये, जिसको आप जुगाड़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि कितना भी नॉलेज हो, हमारा अज्ञान बहुत बड़ा होता है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि कोई एक ऐसा कल्चर बना सकते हैं हम, जिससे ये ऑटोमेटिक चलता रहे, एक लेगेसी हो जाए। सो फॉर एग्जांपल, ये बच्चों को मैं बहुत सारा कर सकता हूँ, फिर भी मैं ये सक्सेशन का प्रोसेस कर रहा हूँ। तो मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि वो उनके दिल को भी छुएगा, और वो लोग भी जब 40-50 के होंगे, बूढ़े होने से पहले, वो लोग खुद भी बच्चों के साथ ये काम करना शुरू करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये जो विरासत है, ये लेगेसी है, वो चल, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। अब बीच में कुछ भी हो सकता है, फिर अगर कुछ शंका आती है तो फिर स्पिरिचुअलिटी मैं मानता हूँ। तो जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु है, मृत्यु के बाद भी जीवन होगा, वो एक विचार है। तो विचार 2000 साल के बाद भी नहीं मरा, तो वो तो मरने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल कुछ न कोई तरह से स्वरूप से उसको तो आगे जाना ही है। उसके अलावा समाज का या विश्व का कोई चारा भी नहीं। बस इतनी सोच है। ये सही बात है कि ये जो नई पीढ़ी है, जो यंगस्टर्स हैं, दिस इज द फ्यूचर ऑफ द ओएसिस, and we all believe in it. That is their course, because they're trying for the same purpose. But मुझे लगता है कि अभी जो इसका इम्पैक्ट है ओएसिस का, ये अभी कई स्टेट्स में यहाँ पर लग रहा है। मेरा ये मतलब ख्वाब था, मैं देखना चाहता था कि हिंदुस्तान के हर रियासत में एटलीस्ट कि ये पैगाम, ये मिशन फैले फूले, तब जाके मैं कहूँगा कि अब बारी आ गई है कि शायद हमें इसको, जो नई यंग जनरेशन है, उन पर ये अब आगे डालना होगा, उनको चलाना होगा। मुझे लगता है कि इट इज़ इमेच्योर, थोड़ा जल्दबाजी लग रही है। मेरी यही राय होगी, और मशवरा भी होगा कि मतलब ये ठीक मशवरा है कि मतलब हमको वैसे तो दूर से झलकती है जो इन्होंने यहाँ पर दिखाया है, उसमें लगता है कि ये काफ़ी, मतलब इसमें इनका कोई कमी नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस मैटर्स। वो एक्सपीरियंस जो आपने हासिल किया है, शायद वो मतलब पढ़ने से या किसी जगह सामने खड़ा होने से वो हासिल नहीं होती है। लिहाजा वो चीज़ें जहन में रख के मुझे लगता है कि इस जो आपने ये फैसला लिया है,
मेरे ख्याल में इट शुड बी पोस्टपोन फॉर सम टाइम। आप शायद ज्यादा थोड़े घबरा गए हैं। एक्चुअली मेरा रिटायरमेंट का मकसद ये था कि मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ बंद। एक तो मैं बहुत काउंसलिंग्स करता हूँ, बहुत दोस्त बन गए हैं, तो मैं इनकार नहीं कर सकता, तो मुझे कुछ तो डेक्लेरेशन करना पड़ेगा, तो ही मैं उसको बंद कर पाऊंगा। तो मुझे वो पूरे विनय विवेक से उनको कहना है कि मैं अब नहीं मिल पाऊंगा। दूसरा कि इन लोगों के लिए ही मैं वक्त बना रहा हूँ, मैं ज़्यादा उनको मेंटर करना चाहता हूँ कि उनके पाँव में जोम है, उनका दिमाग तेज है, तो उनको मेरा ज़्यादा वक्त चाहिए, उनको उनके साथ मुझे काम करना है। अगर मैं दूसरे राज्य में जा रहा हूँ, जैसे कश्मीर, हम चाहते हैं कि इन लोगों को लेके आए, क्योंकि ये हमसे 10 गुना ज़्यादा दौड़ेंगे और दौड़ने की ज़रूरत है। हम लोग सब जगह दौड़ नहीं, हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन उनको एक तजुर्बा देने की ज़रूरत है, साथ में रह के ही हम दे पाएंगे उनको। तो ये दूसरा मकसद है रिटायर होने का। हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि ये उनको ये मेंटरिंग का प्रोसेस है। और दूसरा तीसरा कि जो अभी हम डिनर पे बात कर रहे थे, जो आई थिंक मैनेजमेंट वाले लोग, आई थिंक अनिश भाई ने कहा कि बहुत सारी बार हम विचार मजबूत है, स्ट्रेटेजी सब है, लेकिन एग्जीक्यूशन में खोए हुए रहते हैं। अब जैसे बहुत सारा एग्जीक्यूशन ये लोग कर सकते हैं, उसमें हमारी ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम बाहर निकलेंगे तो बहुत क्रिएटिव दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। अब जैसे हम दूसरे राज्य में जाएंगे कैसे, तो उसके लिए हम लोगों को भी जाना पड़ेगा। शुरुआत में इनको नहीं भेज सकते, हमको जाना पड़ेगा। हाँ, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि उसी तरफ ही जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो हम दूसरी जगह जा पाएंगे। अब यहाँ ही उलझे हुए हम रहेंगे तो हम बाहर कैसे निकलेंगे। तो जो एस्टैब्लिश चीजें हैं, जो एकदम पक्की है, जो ज्यादा गिर नहीं सकती, वो हम इनको सौंप रहे हैं और वो लोग वहां प्रैक्टिस करेंगे। तब तक हम उनके लिए ही दूसरी चीजें बना रहे हैं। तो यहाँ अनुभव करके फिर वो लोग दूसरा भी संभालना शुरू करेंगे। सो ये एक सक्सेशन का एक सिस्टमेटिक प्लान है, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है, उसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मैंने उनका कहने का मतलब है, जैसे इनके लिए जो एडवेंचर हो रहा है वो हमारे लिए भी एक दूसरे किस्म का एडवेंचर होना चाहिए, तो हमें भी मजा आए, एक हमारा भी कोई क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन हो। जैसे कश्मीर की बात करें तो शिबा जी ने तो आप जानते हैं कि वन वुमन आर्मी की तरफ इतना काम किया है। अभी मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनका साथ निभा। आप लोगों को देख के गिल्टी फील होता है कि इतना कमिटमेंट है आप लोगों का, तो हमें लगता है कि हमें और मेहनत करनी है। तो ये सब स्पेस बना के ही हम वहाँ आ पाएंगे, और अगर वहाँ आते हैं तो हमको वहाँ काफी वक्त गुजारना पड़ेगा शुरुआत में। तो ये सब करने से ही वो वक्त हम निकाल पाएंगे। तो ये मैं यहाँ पर फिर से दोहराना चाहता हूँ कि इस बार जो हालात थे, जो मसाइल हमें वहाँ पर सामने हुए थे, तो कभी हम सोचते थे आए, कभी ना आए। शायद मेरे ख्याल में लास्ट रात तक भी ये शायद डिसाइड हुआ, सब बरादरी ने किया था कि नहीं, अब नहीं जाएंगे, क्योंकि शायद हालात परमिसिबल नहीं है इसके लिए। लेकिन हम, मेरे ख्याल में दिल नहीं मानता था कि हम शिबा जी को ना कहें। बात तो ये सही है, दिल नहीं कह रहा था कि उसको ना कहें, लेकिन चाहे वो डोमेस्टिक प्रेशर हमको सहना पड़ा, घरेलू मतलब ये जो हमारा था, या जो मतलब जो सर्कमस्टेंशियल था, या मतलब जो हालात भी थे यहाँ पर, तो इन सारी चीज़ों की वजह से अकल नहीं मान रही थी कि ये। लेकिन चूंकि एक बात मैं बताऊंगा आपको कि मतलब हमें इसके साथ लगाव है, खुशी, मतलब ये मतलब मैं क्या हूँ, प्यार है इसके साथ। तो खुशी तो अलग बात है फिर, लेकिन बेसिकली जो मतलब ये जो इसके साथ लगाव है ना, उस चीज़ ने और इनकी जो मतलब बातों में जो असर है, बेसिकली हम उसी के नाते कि हम इसको मतलब मैंने सोच के कहते थे कि शायद नहीं कहेंगे, कल कहता है उसको कि नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर हमें लास्ट में ये एक्सेप्ट करना पड़ा, वट एवर कम्स, कि हमको जाना ही जाना पड़ेगा। इसलिए मैं बेग साहब को और शबीर भाई को भी मैं कह रहा था कि आप लोग हमें कहते रहते हैं कि यू आर इंस्पायर्ड बाय अस वगैरह वगैरह, लेकिन हम बिल्कुल अतिशयोक्ति के बिना कह रहे हैं कि आप लोग भी मजबूर कर रहे हैं हमको। आप लोगों का जो डेडिकेशन है, आप लोगों की जो शुद्ध भावना है, आप लोगों का जो कमिटमेंट हम देख रहे हैं, हम हार जाते हैं। हम नहीं कर पा रहे हो ऐसा लगता है तो भी हम 2 कदम आगे भी चल के करना चाहते हैं, बिकॉज वी आर ट्रेमेंडसली इंस्पायर्ड बाय यू गाइस। आपने कश्मीर की जो पूरी टीम है और जो लास्ट ईयर भी आए थे, इस साल आप आए हो, तो वो ये आपका खुद का कमिटमेंट इतना स्ट्रांग है
कि हम नहीं छोड़ सकते हैं आपको, ये तो ये म्यूचुअल है, इंस्पिरेशन भी म्यूचुअल है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। सो यस जदीबेन, सॉरी। थोड़ी डायलेमास है, ये 4 दिन निकाल के आना बहुत आसान नहीं लग रहा था, बट वर्थ इन्वेस्टिंग। संस्था अभी जो आतापी सेवा फाउंडेशन, आतापी बोलते हैं हम लोग, पूरा नाम तो नहीं बोलते, आतापी जिस फेज में से गुजर रहा है, आतापी का जब बर्थ हुआ तो एक कॉर्पोरेट के पेट से जन्म, तो तुषार भाई और TML इंडस्ट्रीज वो एरिया में थी, इसलिए उसका जन्म हुआ, तो पिलुद्रा गांव में से उसका जन्म हुआ। और फिर ये बहुत सोची समझी सोच के साथ ये अपना एक अस्तित्व बनाएगा और कंपनी के पे आधारित नहीं रहेगा, ये बहुत कॉन्शियस सोच थी। यानी आतापी ने अपना अलग एक अस्तित्व वो एरिया के अंदर खड़ा किया। तो हम लोग अभी तक ये लिबर्टी ले रहे थे कि हम लोग बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड संस्था हैं। जब आप लोगों को देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग हम लोग से बहुत कई गुना ज़्यादा प्रोसेस में बिलीव करते हैं। अभी हम लोगों की सबसे बड़ी टीका जो होती है, आतापी की एक टीका जो होती है वो ये होती है कि आप प्रक्रियाएं बहुत करते हो, प्रोसेसेस बहुत करते हो, रिजल्ट्स नहीं होते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट में बहुत बार रिजल्ट्स जितने दिखने चाहिए उतने दिखते नहीं हैं, और देयर लेवल्स एंड लेयर्स ऑफ चेंजेस जो कभी हम लोग कैप्चर भी नहीं कर पाते। तो अभी बहुत बड़ा एक डायलेमा चल रहा है कि प्रोसेस और रिजल्ट्स, और क्योंकि आतापी संस्था है, संस्था के स्वरूप में चली, मूवमेंट के स्वरूप में नहीं चल रहा है, तो दूसरा ये भी आ जाता है कि आप अपना सस्टेन कहाँ से कर रहे हैं, तो फंडिंग पार्टनर्स कहाँ से आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा फंडिंग पार्टनर्स अभी जो आसपास हैं वो कॉर्पोरेट्स हैं और बहुत डिलीवरेबल्स में मांगते हैं। तो ये बहुत बड़ा डायलेमा है कि कैसे बैलेंस करें। तो आप लोगों के ऐसे डायलेमा आते हैं या नहीं। दूसरा जो मुझे डायलेमा बहुत जो हिट कर रहा है, हम लोग समुदाय स्थित संगठन जो है वो खड़े हुए हैं, और समुदाय स्थित संगठन में से जो नेतृत्व निकला है समुदाय का नेतृत्व है। अब हम लोग बोल रहे हैं आप नेता हैं, और वो बोल रहे हैं हमको कर्मचारी बनना है। तो ये कर्मचारी और नेता की जो कैसे बोले उनको, क्योंकि उनको कहीं पे अपना जो एक हित उसमें दिख रहा है कि यहाँ से कहीं मेरा सस्टेनेंस निकलेगा। तो कहीं यूथ भी जब आता है, कहीं कोई यूथ ये माइंडसेट के साथ भी आता होगा कि ये हमारा सस्टेनेंस यहाँ से निकलेगा, आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। तो ये बैलेंस कैसे लाए, वो स्पिरिट ऑफ वॉलंटरिज्म को कैसे सस्टेन करना, और ये कर्मचारी माइंडसेट से कैसे नेतृत्व को बचाना, ये एक बहुत तीखा अभी डायलेमा चल रहा है। तो ये दो, और आप संस्था और मूवमेंट को कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे पर्सनल मेरा एक जो अभी मैं लड़ाई जो चल रही है, और ऊपर से अब वो इस में आ गई मैं 4 दिन के लिए। संस्था जैसे बड़ी होती है, सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट कि सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है, बट सिस्टम्स बंधन भी बहुत लाती है, और वो बंधन मेरे जैसे इंसान को बहुत सफोकेट करते हैं। तो अभी तक मेरा ये एटीट्यूड रहा है कि जब संस्था बड़ी होने लगती है मैं संस्था से भाग जाती हूँ। सॉरी तुषार। बट वो मुझे अभी ऐसा रियलाइज लगता है भगोड़े वाली वृत्ति है, भागना नहीं चाहिए, बट इसको बैलेंस कहाँ पे ढूंढे। सिस्टम्स, क्रिएटिविटी दोनों साथ में कैसे चल सकती हैं। तो ये कुछ डायलेमास मेरे 4 दिन से सब बातें सुन के, और आई डोंट नो आपके पास जो अनुभव है और जो इस प्रोसेसेस को आप इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो शायद
इसके कुछ आपके पास विकल्प होंगे, ऐसा मैं आशा रखती हूँ। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका कि डोनर्स आपके पास से नंबर्स मांगते हैं बिकॉज डिलीवरेबल्स, राइट? दे वांट कि जो पैसा आपको दे रहे हैं उसका क्या आउटपुट हुआ, बिकॉज बिजनेसमैन है तो दे हैव ऑलवेज सीन थिंग्स इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। और ये हमारा भी संघर्ष, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी के साथ भी हम जब काम करते हैं या किसी के साथ मिलते हैं तो वो राइट है, बिकॉज दे बिलीव इन टैंजिबल्स, वेयर इज द वर्क दैट वी डू इज इनटैंजिबल। पर हमारा बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं, वेलविशर्स हैं, वो शायद हम ऐसे ही स्क्रीन भी करते हैं और ऐसे ही दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं या उसी तरह के दोस्त हमारे साथ जुड़ते हैं जिनके अंदर ये विजन होता है। एंड वी बिलीव दैट वो लोग ही हमारे साथ जुड़े जो ये देख सकते हैं कि ये जो काम हो रहा है इसमें जो अभी दिखाई नहीं दे रहा मगर वो कल दिखने वाला है। तो ऐसे विजनरीज ही हमारे साथ जुड़े हैं। तो जितने भी सपोर्टर्स हैं हमारे, उनको कभी शक नहीं होता बिकॉज दे नो, दे स्पीक द सेम लैंग्वेज दैट वी आर टॉकिंग। सो बिकॉज वी हैव नेवर गॉन फॉर मनी, वी हैव गॉन फॉर द पर्सन। हम कभी भी, जब भी हमारे साथ सपोर्टर्स जुड़े हैं, हम कभी किसी के पास से पैसा ऐसा डोनेशन लेने के लिए नहीं गए। हम कोई इंसान हमारे साथ ये मूवमेंट को सब्सक्राइब करे उसके लिए भी, द होल पर्सन इज इन्वॉल्व। तो जब इंसान कॉज के साथ इन्वॉल्व होता है तो कॉज को समझने के बाद वो इन्वॉल्व होता है। तो अगर वो इन्वॉल्व होता है, उसने सच्चाई देख ली है, तो फिर कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती। और अगर कभी कोई इंसान नंबर्स की बात करता है और कोई, तो वहीं पे हमारा वो बात खत्म हो जाती है। सो देयर इज नो फर्दर जर्नी अहेड। हमारा कोई डोनर पार्टनर ऐसा नहीं है जिनको हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के जरिए हम फंड लाते हो, कोई भी है ही नहीं हमारे। कोई हमारे ऐसे ही दोस्त हैं जो कोई ना कोई तरह से बेनिफिशियरी है, कंट्रीब्यूटर है, इन्वॉल्व हुए हैं, बस बराबर समझते हैं। फिर वो कभी बात करेंगे प्रेजेंटेशन की दुनिया के लिए, लेकिन उनके लिए वो ज़रूरी नहीं है, वो समझ पाए हैं। तो ये एक लीडरशिप एबिलिटी कह सकती हो आप कि कैसे आप डोनर को शामिल करें अंदर। तो ये हमारा कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट वाला हम रखते ही नहीं है, वो एटीट्यूड ही नहीं रखते हैं। हमने कभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के भेजा हो, वो लोग बोलते हैं कि अब रिपोर्ट बना के भेज दो, तब हम भेज देते हैं टेक्निकली। वो दैट इज जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी, बट अदरवाइज थिंग्स आर हार्ट टू हार्ट ओनली, वो होता है पूरा। दूसरा जो आपने बताया उसका मैं रिस्पांस बहुत ब्रीफ में दे दूं, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात मांगी है क्वेश्चन से और बहुत सही बात है। तो मैं भी, मेरा थोड़ा दर्द है दिली बांटना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो वॉलंटरी एक्टिविटी करते हैं, वी बिलीव इन द स्पिरिट ऑफ वॉलंटरिज्म। तो वॉलंटरिज्म का स्पिरिट यही है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड है, डाइवर्सिफाइड है। कितने सारे, आज मैं बोलूँगा कि हमारे देश में कितने सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, छोटे मोटे कितने सारे डिफरेंट कॉजेज, जिससे ये देश चलता है, ऐसा मैं कहूँगा, जिससे ये सब चीज़ें जिंदा रहती है। तो वो फिर उनका भी ग्रोथ होता है, उनकी भी जर्नी होती है। तो वो तो जैसे हमारे भाई बहन की तरह हुआ, दे आर द NGO लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो मैं उनको देखता हूँ, मेरी भी जर्नी रही, मैं उनको देखता हूँ कहीं रुक जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं। तो मुझे कभी मन होता है कि मैं कुछ उनको समझा सकूँ, मेरा शेयर कर सकूँ। तो लेकिन मैंने कोशिश भी की है, लेकिन फिर ऐसा भी होता है कि भाई कौन सिखाने वाला, ये भी आता है कि लोगों को अच्छा नहीं लगता कि हमें कौन सिखाने वाला हम। तो फिर वो बात वहाँ रुक जाती है। लेकिन अभी मैं और शिवा वापस डिस्कस कर रहे थे और हमने कोशिश शुरू की है वापस, क्योंकि बहुत अच्छे NGOs हैं दूसरे जो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन सबके पास ये विचार नहीं होता है। मेरी कुछ जिसको टैलेंट बोलो या जो भी बोलो हो, तो ये कुछ है तो जो दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के काम की है। तो हम ये कर रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आपके 2 या 4 लीडर को भेजो हमारे साथ, हम पार्टनरशिप करते हैं और हम हेल्प करना चाहते हैं कि आप ये सब जो वैल्यूज़ जो है वो कैसे लेयर्ड चीज़ें हैं सब। और जैसे जितने रूल्स हम सिखाते हैं बच्चों को, मैं सिखाता हूँ कि जो रूल को फॉलो अच्छी तरह से वही कर सकता है जो जानता है कि रूल कब तोड़ना, सिस्टम्स को भी तोड़नी पड़ती है, तो क्योंकि सबके पीछे कोई मकसद होता है, कोई सिद्धांत होता है। उसके बिना कोई भी चीज़ रटते रहो, चलाते रहो, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। कॉमन सेंस तो हर जगह आनी चाहिए। तो ये बहुत सारी लेयर्ड चीज़ें हैं, वो 1-2 दिन में हो भी नहीं सकती। ये एक 3-4 साल का प्रोसेस है पूरा स्क्रूटिनाइज करने का। तो मैं और शिवा सोच रहे हैं कि
कुछ 15-20 NGOs को इनवाइट करें, क्योंकि वो भी हमको लगता है हमारा धर्म है कि हम जो सीखे हैं तो हमारे दूसरे लोगों को के साथ हम क्यों ना बांटे, हमारी एक्सपर्टीज बन गई है आज तो और प्रूवन है, तो हम ये भी करना चाहते हैं. सो वी वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑल्सो. तो तब आपको पता चलेगा, क्योंकि इतनी सीधी बात नहीं है, बहुत सारे डायमेंशंस है, न्यूआंसेस है उसके बहुत सारे. तो ये लेयर्स समझना, कैसे करना, कैसे बैलेंस करना, चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे करना, वो बहुत समझाना पड़ता है. एंड सिस्टम से ज़्यादा लोग तैयार करना, ऐसे लोग होने चाहिए जो ये सब समझ पाए, उनको अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज करके. तो ये पूरी जो सिस्टम प्रोसेसेस जो है वो उसको लेके है, जो हम विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर. कि हम जानते हैं आप जो लैंग्वेज बोल रही है उससे पता चलता है कि कितनी ऑथेंटिस्टिक आपकी भी स्ट्रगल है, आप भी कितना सोच रही है. सो बहुत अच्छी बात है. विल बी वेरी हैप्पी टू डू दिस. बट वी हैव टू, जैसे अमृत भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि इसके लिए रिफ्लेक्शन के लिए टाइम देना पड़ता है. हमारे एक साल में 1 महीना भर तो रिफ्लेक्शन में जाता होगा, और वो हमको बहुत बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट लगता है, क्योंकि वो हमारी उड़ान को तेज करता है. वो ऐसा नहीं है कि भाग दौड़ में से फिर वो काम रह जाते हैं. तो ये जो काम की जो मेंटालिटी है और सीखने का वक्त नहीं होता है, ये किसी के पास ये टाइम नहीं है. बुलाते हैं 3 दिन आइए, तो लोग कहते नहीं वो टाइम नहीं है, तो फिर वो नहीं है ये हो पाएगा. ये रिफ्लेक्शन के लिए और मेडिटेशन के लिए तो टाइम देना ही पड़ेगा. One of the learning that I am picking that Yes, yes. personally and organization. Yes. Don't compromise on reflection. Oh, absolutely, absolutely. बस बाकी सब बाहर काम छूटने दो, एक बार छूटे तो, लेकिन ये जड़ है, ये जो अगर ये नहीं है तो फिर कुछ होने वाला नहीं है. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. सो विल बी वेरी हैप्पी टू इनवाइट यू एंड विल बी वेरी हैप्पी टू बी एबल टू हेल्प यू wherever we can. थोड़ा रिपीट होगा, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम आए और पूरा स्कोप ओएसिस का पता नहीं है, सो अभी आपने लीडरशिप को, नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप को समराइज किया, चुन के उनकी समरी में एक लाइन में सबको आइडेंटिफाई किया और हमको उनकी झलक देखी. सो अभी ओएसिस के जो प्रोग्राम है उसकी थोड़ी झलक आप दोनों से, या जो 4-5 प्रोग्राम है, जस्ट समरी व्हाट यू सी और हाउ व्हाट वी नो इन दैट, व्हाट यू डू इन दैट. Is it possible or is it? So from your perspective, what Are you saying what will? No, so what are the network or the programs? Programs, but what from your perspective, have you summarized each person? You're summarizing a program which what benefits the most, or how, what's the goal and what's the value? Okay. So I suppose if you're just to understand, अगर आप पूछ रहे हैं कि कौन से प्रोग्राम्स अभी ये जो इनको आइडेंटिफाई करके, इनके स्ट्रेंथ्स को सबको देखकर जो आइडेंटिफाई करके कौन से प्रोग्राम्स अभी हमारे वैसे से कितने प्रोग्राम? अच्छा, आप जो फर्स्ट टाइमर जिनको पता ही नहीं है कि कितने प्रोग्राम्स, तो आई थिंक हमारे दो इम्पोर्टेंटली, मेरे ख्याल से उनका शायद आपका कहना ये है ना कि जैसे आपने ये माइक जनरेशन को एक लाइन में इंट्रोड्यूस कराया, वैसे सब प्रोग्राम्स को एक है उसमें लाइन में क्या है. देखो हमारे पास मुझे एक ज्योति बहन के सवाल का जवाब देना रहेगा. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि संस्था में और मूवमेंट में फ़र्क कैसे करते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हम हमेशा कोर ग्रुप के साथ ही बात करते रहते हैं. लेकिन हमारी डेफिनेशन है ये कि जब चीज़ वाइल्ड फायर की तरह हमारे हाथ से निकल जाए तभी हम उसको मूवमेंट कहते हैं. जो हमारे हाथ, संस्था में तो आप सब कंट्रोल करते रहते हो, लेकिन कोई चीज़ें फिर आपके कंट्रोल के बाहर चली जाती है. और दूसरा, आपको बहुत ताज्जुब होगा कि बिकॉज ऑफ द सेम रिफ्लेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमारे इनिशियल 4 साल की बात है जब हम हर 3 महीने में भाग के कहीं आश्रम में, नदी किनारे कहीं चले जाते थे. 30, 40, 50 लोग जो भी है शामिल, हम ये 30 साल से करते आ रहे हैं. तब कोई एक हमारे वेलविशर थे जो एक किताब लेके आए थे रामकृष्ण परमहंस की, और उसमें उन्होंने मूवमेंट की मैकेनिज्म बताई थी.
और उन्होंने देखो कैसी चीज़ें का आप रिफ्लेक्शन करते हो, मेडिटेट करते हो तो कहाँ कहाँ से कैसी कैसी चीज़ें आपको मिलती है। तो उन्होंने उसमें ये लिखा था कि कोई मूवमेंट होती है दुनिया में, कहीं भी जो मूवमेंट होती है, उन्होंने लिखा था कि उसके 4 स्टेज होते हैं। तो पहला स्टेज ये होता है कि किसी इंसान का कुछ विचार होता है और वो विचार को लेके वो काम शुरू करता है, इम्प्लीमेंट करता है। तो पहला जो स्टेज होता है उसमें उसका कोर ग्रुप बनता है, माने उसकी लगन देख के, उसका डेडिकेशन देख के उसके आसपास एक कोर ग्रुप खड़ा हो जाता है। फिर दूसरा स्टेज आता है तो उसमें ये कोर ग्रुप होता है, वो एक्सपांड होता है ज्योग्राफिकली। पहले तो उन्होंने एक जगह पे किया होता है, कोर ग्रुप बनता है। दूसरे स्टेज में वो कोर ग्रुप टूटता है, बढ़ता है, दूसरी जगह जाता है, रूट्स लेता है, तो उनका ज्योग्राफिकल एक्सपांशन होता है। तीसरा स्टेज होता है जिसमें हर ज्योग्राफिकल लोकेलिटी में स्ट्रॉन्ग कोर ग्रुप्स खड़े होते हैं, डेवलप होते होते। और फोर्थ स्टेज होता है जिसमें ये वाइल्ड फायर इफेक्ट आती है एंड इट स्टार्ट्स बिकमिंग पार्ट ऑफ द कल्चर इन द सोसाइटी। इट इज नो लॉन्गर the fashion, new thing, etc. But it starts becoming fashion. It starts becoming the culture of the society. ये 4 स्टेज है। उसमें ये भी लिखा था कि हर स्टेज 8 से 12 साल का होता है, तो जैसे आपने बताया 60 इयर्स लगे गांधी जी को। आप देखो अब हमने क्या किया कि फिर देखा कि सचमुच वर्ल्ड ओवर जितनी मूवमेंट हुई है इसमें फिट होती है कि नहीं। एंड वी कुड एक्चुअली रिकॉग्नाइज कि हम लोग अभी पहली मूवमेंट के हाफ स्टेज के बाद है, अभी हो रही है हमारी कोर ग्रुप। और हर स्टेज हमारा जैसे आता गया हमको पता चलता गया कि वी आर प्रोसीडिंग। सो जैसे हम 2 स्टेज क्रॉस कर चुके हैं, अब हमारा तीसरा स्टेज चल रहा है। बट अगेन वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं होते हैं, तो ऑलरेडी कोई जगह ये वाइल्ड फायर इफेक्ट शुरू हो गई है, लोग बोलना शुरू कर रहे हैं, कहीं कहीं लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हो रही है। तो ये आपकी ये एक विजन है कि कैसे लोग करना शुरू कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा उनको कि ये सोच कहाँ से आई, एंड पीपल विल स्टार्ट डूइंग इट। इवन वी विल आल्सो बी सरप्राइज्ड टू नो अच्छा ये कर रहे हैं, और हंसेंगे कि चलो हमारी इफेक्ट यहाँ पे हो रही है। दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग राइट नाउ इन अ वेरी स्मॉल वे, बट इट इज हैपनिंग। सो ये एक मुझे लगता है इससे आपको और सब लोगों को जानने में इंटरेस्ट होगा। दिस इज वेरी वंडरफुल नॉलेज। और सिद्धार्थ भाई के सवाल के जवाब में एक तो हमारे पास एक फिगर है, मैं प्रिपेयर्ड होता तो शायद हम आपको दिखा, बट वी हैव जस्ट वन डायग्राम व्हिच एक्सप्लेन्स टू यू। डू वी हैव इट? हाँ, सो हाँ, लेकिन कैसे दिखाएंगे हमको? आप आई विल सेंड इट टू यू, बट बेसिकली वी हैव प्रिपेयर्ड वन कनेक्टिंग डायग्राम जो पूरी मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है, इंटरकनेक्शन को भी डिस्क्राइब करता है। लेकिन मैं बहुत क्विकली आपको बता दूं क्योंकि आपकी बात सही है कि तुरंत आपको पता चले। बट द लाइफ कैंप जिसको हम कहते हैं वो एंट्री लेवल प्रोग्राम है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए लाइफ कैंप वो एंट्री लेवल प्रोग्राम है, 2 से 3 दिन का होता है। मोस्टली रेसिडेंशियल होता है, और रेसिडेंशियल ना भी हो कभी, तो वो एंट्री लेवल प्रोग्राम है खाली बच्चों को एक स्वाद चखाने के लिए, बच्चों का फीडबैक जनरेट करने के लिए, जो स्कूल होती है उनको भी एक कन्विंस करने के लिए कि ये एक अच्छा प्रोग्राम है। वो लाइफ कैंप होता है। उसके बाद लव कैंप भी होते हैं। तो जैसे लाइफ कैंप है, हम मानते हैं कि बच्चों को जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं, गोल क्या होते हैं, कॉन्फिडेंस क्या होता है, कंडीशनिंग क्या होता है, तो 3 दिन में बहुत जो फंडामेंटल चीज़ें पता चलती है। एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो स्कूल में भी होता है, यहाँ भी होता है, सब जगह होता है। वो एंट्री लेवल का प्रोग्राम है, तो उसमें हम फ्लेक्सिबल रहते हैं बहुत सारा, तो बहुत सारी चीज़ें हम कॉम्प्रोमाइज करके भी वो प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद लव, जैसे आज प्यार के नाम पे सब कुछ चलता है, तो हमको लगता है कि नई पीढ़ी को बहुत ज़रूरत है समझाने की सच्चा प्यार क्या है, प्यार किसको कहते हैं, क्या डिफरेंस है प्यार में, अट्रैक्शन में। तो वी हैव अनदर लव कैंप, तो जहाँ इंटरेस्ट हो उसको फॉलो करने में, तो वहाँ लव कैंप भी करते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा कैंप है जिसको हम फ्रेंडशिप, लव लाइफ एंड फ्रेंडशिप, वो हमारे कोर वर्ड्स है। तो तीसरा जो कैंप है वो फ्रेंडशिप कैंप है, जिसको हम ड्रीम इंडिया कैंप भी कहते हैं। 2 नाम है उसके। ड्रीम इंडिया कैंप है वो 7 दिन का है। नाउ दैट इज अवर फ्लैगशिप प्रोग्राम। ये तो हमारे एक एक्वेंटेंस के और एक ग्रास रूट लेवल के काम के प्रोग्राम है, लेकिन फ्रेंडशिप कैंप जो है, जो ड्रीम इंडिया कैंप है, वो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। और उसमें जो मिरेकल होता है 7 दिन में, नेट a boy or girl coming in and going out, there is a miraculous difference, you cannot believe कैसा हो सकता है। और वो आपको बताना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम आप अगर आते हैं
तो आपको ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। आप अगर पहले से प्लान करके रखें तो हम यहाँ प्रोग्राम ऐसे प्लान करेंगे डेट्स को मैच करके, सो दैट यू कैन गो थ्रू दैट प्रोग्राम एज ए फैसिलिटेटर और एज ए फैकल्टी. We do not allow anybody to be a witness. You have to participate in that program, you know. So it will be amazing experience to see what in 7 days we can do. और जो आपने बताया था, हम बहुत सारी जगह से सीख के हमने ये प्रोग्राम बनाया है, उसमें आपको वेस्टर्न ईस्टर्न सब फिलोसॉफीज का एक समन्वय दिखेगा. सो ये हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है. ये हो गया ये प्रोग्राम से. उसके साथ हमने अभी मिसाल कंपटीशन इंट्रोड्यूस की है स्कूल्स में. तो मिसाल हमने इसलिए इंट्रोड्यूस की है क्योंकि हमने पहले L3 का कोर्स चलाया जो आप जानते हैं, वो हमने टीनेजर्स के लिए शुरू किया. तो टीनेजर्स का रिस्पांस अच्छा मिलने लगा. अब हमको पता है कि हमको तो रिवॉल्यूशन लाना है, अल्टीमेटली तो मूवमेंट करनी है. तो अगर यहाँ हम एक साल में अगर 1000 या 2000 टीनेजर को ट्रेन कर सकते हैं तो इट इज़ बेटर कि लीडर्स को ट्रेन करें ताकि वो वापस जाके अपने समाज में उसकी रिपल इफेक्ट शुरू कर सके. सो अब कैसे हम रिक्रूट करें, कैसे तय करें कि ये लीडर्स है, तो उसके लिए हमने मिसाल का एक बहुत इंटेलिजेंट प्रोसेस है, वो बहुत विजनरी प्रोसेस है, उसको हमने लॉन्च किया ताकि जो बच्चे इधर आते हैं वो उनको हम तराश के लाते हैं तो वो उनकी रिपल इफेक्ट हो सकती है. वो मिसाल आया, फिर मिसाल ऑनरशिप आया. अब मिसाल करते करते हमको ऐसा लगा कि ये बच्चों के साथ अगर हम 10 दिन बिताते हैं तो इतना मैजिक होता है, तो कुछ बच्चों के साथ हम 24/7 क्यों नहीं लगा सकते हैं. 50-100 बच्चों के साथ तो करके देखें 4-5 साल, तो क्योंकि अभी मूवमेंट बहुत हमारी क्रिटिकल स्टेज में है एंड वी आर प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट लीगेसी. तो उसमें से ऑनरशिप का पूरा प्रोजेक्ट आया. और ऑनरशिप का जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत बड़ी संभावना है. माने वी आर ऑल्सो डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री. माने कोई MHA आके बताता है मुझे एनवायरमेंट के लिए काम करना है, तो वी आर गोइंग टू वी आर एनकरेजिंग them to open their own NGO also. So in any way they can serve the country, but we are preparing them as leaders so that वो तैयार होंगे कि हम कैसे सोशल वेलफेयर एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, सोशल वेलफेयर कैसे करें. तो ये एक स्ट्रेटेजिक पार्ट हो गया. L3 वो हमारा वापस फ्लैगशिप प्रोग्राम है. इट इज वन ऑफ द वंडरफुल प्रोग्राम विच रिक्वायर्स कमिटमेंट. 4 साल का कमिटमेंट चाहिए, लेकिन 4 साल का कमिटमेंट हो तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाता है लाइफ में कि जिसके आप कल्पना न कर सके. अब ये जो सब प्रोग्राम है उसमें इंटर रिलेशनशिप है. जैसे टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए प्रोग्राम होते हैं तो उनमें से हमको फैसिलिटेटर मिलते हैं. स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पहचान होती है तो उन लोग ज्योतिधर में फिर आते हैं. सो ये जो पूरा हमारा जो इंटरसेक्शन है सब, वो सब स्ट्रेटेजिकली होता रहता है. देन अगर आप वो चार्ट देखेंगे, वो आप याद करा देंगे तो हम आपको मेल कर देंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि पब्लिकेशन का कोई हिस्सा है, पार्टनरशिप्स करते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, उनका कुछ हिस्सा है. सो देयर आर स्ट्रेटेजिकली लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो गोइंग ऑन व्हिच आर अगेन इंटरनल सिनर्जी भी होती है. तो एक चीज दूसरी चीज को बढ़ावा देती है, यू नो. तो ज्योतिधर हुआ तो लाइफ कैंप बढ़ते हैं, लाइफ कैंप होते हैं, उसमें से बच्चे मिलते हैं, उसमें से लीडर्स तैयार होते हैं, लीडर्स तैयार होते हैं तो प्रवृत्ति को वेग मिलता है, प्रवृत्ति को वेग मिलता है, दूसरे लोग आते हैं. तो ये पूरी प्रोसेस इस तरह से चलती है. दिस इज द ऑल थिंग दैट आई कैन टेल यू. बट आप वो चार्ट देखोगे ना तो विजुअली आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि कैसे सब प्रोग्राम सीक्वेंस में चलते हैं. I want to know the age group when we can participate in one or other programs like life camp हो गया, love camp हो गया, friendship camp हो गया. That one I want to know. कितनी कम उम्र से हो सकता है? Yes. मतलब कोई मतलब minimum age or a maximum age. Just like I never got a chance to participate in a DIC. College student. I'm a college student. बट कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए DIC करते हैं ना? या वो उसमें I think never got a chance. So this is my curiosity to know. नहीं, एक्चुअली यू कैन पार्टिसिपेट इन ऑल द प्रोग्राम्स. ओनली थिंग इज की जो कैपेसिटी है, जैसे अगर बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है और आपको अंदर पार्टिसिपेंट रख देंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा, राइट. लेकिन आप वॉलंटियर बन सकते हैं, फैकल्टी बन सकते हैं, तो उसमें भी मजा आएगा आपको. और कभी कभी हम यूथ के भी DIC करते हैं, यू नो. मैं तो चाहता हूँ, मेरा एक ड्रीम है कि हम जल्दी जल्दी टीचर्स का टीम इंडिया कैंप करें.
मुझे देखना है कि वो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में कैसे सस्टेन करते हैं। बच्चे तो सर्वाइव कर जाते हैं, वो सर्वाइव कर पाएंगे 7 दिन के लिए। सो बेटा हो सकता है सब कुछ, तो कोई पाबंदी नहीं है। और हम तो शरीर के तो हम देखते नहीं है ना, जो खुले मन का है वो कहीं भी जा सकता है, ठीक। लेकिन अगर आपको कोई प्रोग्राम में आना हो तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप टच में रहिए, पूछते रहिए, और जब अपॉर्चुनिटी ढूंढ के, ठीक। मेरे को जब ओएसिस मिला तो मैं कॉलेज के 2nd ईयर तक पहुंच चुका था। मैं अभी भी ख्वाहिश करता हूँ कि मेरे को स्कूल में मिल अगर 3-4 साल पीछे मिलता तो आज मैं शायद कुछ और ही होता, और दीदी की जगह पे बैठा होता शायद। उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है, मैं अभी दृष्टि के अंदर देखूँ, वो लोग 10th में है फिर भी मुझसे ज़्यादा, मतलब हमारे जो एज ग्रुप में मैच्योरिटी लेवल कहते हैं कि जब कॉलेज एंड लाइफ में कैसा होता है, उससे वो कुछ और ही होता है। अब तुम ये सोचो कि हम सब बड़े लोगों को कितना पछतावा होता है। मुझे नहीं मिला लाइफ कैंप, मेरे 20 साल बिगड़ गए, तुमको पता नहीं है। जलन होती इन लोगों से कि कहाँ जाने वाले हैं हमारी उम्र में, है ना। जलन की बात नहीं है वैसे, नहीं मीठी जलन की बात है, लेकिन ये सही बात है। तो हमको यही दिखना का कि जितना मिला इतना अच्छा है, जब मिला इतना अच्छा है, क्या होता अगर अभी को मिल जाता, जो क्या होता। सो गेस्ट के लिए फोरम था, तो और कोई प्रश्न हो क्रिटिकल जानने के लिए, अदरवाइज हाँ जी रोहित। I do have one question, but I'm a little bit sensitive to everybody's time here at this moment. Perhaps I can just catch up with you with 5 minutes and we can excuse everybody. Yeah, let's see what else. is the question. If it is worth discussing within the forum, then we'll take it up. Otherwise, we'll talk in person. All right. Then the question is, you showed some willingness to work with other organizations, other NGOs. And I'm connected to one NGO at Calcutta, which is Children International, $130 million budget per year. Yeah. And I think they can use this service very much so. And they had made some efforts to work with Pratham, which means that Children International was open arms to visit children, Pratham's couple of facilities rather than naming the places. And I wanted to know how you are with open arms. And they would be frankly sure to share your cost, whatever it's costing Oasis. They would be open to do so if you can work with them or make some arrangements. And I could be a catalyst if necessary. Yeah, I can tell you 2 things. एक तो पूछने की जरूरत नहीं है, if anything that is a real cause, genuine cause, और अगर ये हम जो भी कर रहे हैं आप समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, तो अगर in terms of developing this culture in an NGO, you know, this kind of things, तो अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम बिल्कुल करेंगे। तुषार भाई ने जो फाइनेंस की बात बताई थी उसको लेके मैं एक चीज़ साफ कर लूँ कि हम जहाँ तक हो सके वहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। सो अगर ये लोग आ रहे हैं तो जस्ट फॉरगेट अबाउट कॉस्ट, वी विल मैनेज इट एवरीवेयर, बट इट हैज़ टू बी ए सिनर्जी। सो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, वो वहाँ पे है, वो तो उनके बच्चों के लिए हम काम करें, वहाँ भी लीडरशिप डेवलप करें, बिकॉज हमको तो ये काम करना है। सो वी ट्राई टू थ्रो द फाइनेंस आउट इन एज मैनी थिंग्स एज पॉसिबल, so that unnecessary transactions होते रहते हैं, you know, तो we keep money as much out as we can. In fact मुझे कभी NGO इस तरह से बनाना ही नहीं था, आपको असली स्टोरी बनाऊँ तो I really wanted to remain away from formally registering, but the situations came up and they were right also, and everybody says कि हमको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं जा पाएंगे, तो हमने किया, but we are trying to keep it bare to bare minimum, so very welcome। और दूसरा हमारी कुछ वापस प्रोसेसेस होती है। सो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहता है तो हम स्टडी करते हैं, फिर हम रिकमेंड करते हैं कोई प्रोसेस जो डेमोक्रेटिक होता है। फॉर एग्जांपल हमने पहले कंपनीज में भी काम किया है, इवन कॉमर्शियल प्रोफेशनल कंपनीज में भी, जैसे 4000 एम्प्लॉई है और वो लोग चाहते हैं कि ये कल्चर कैसे हो हमारे वहाँ भी, तो वहाँ हम टॉप लीडर्स को इन्वाइट नहीं करते हैं। व्हाट वी डू इज वी हैव 2 कंडीशन। एक तो जो नंबर 1 जो आदमी है, CEO है,
they have to come in this program because we believe trees die from the top. So जहाँ पे लीडर्स मना करते हैं वहाँ हम काम नहीं करते, क्योंकि जो लीडर अगर सीखता नहीं है, जो टॉप आदमी है वो, तो फिर वो यहाँ से सीख के जाएंगे लेकिन that culture will suffocate. So the CEOs must come in this program. That is the first thing. And second thing कि वहाँ से हम एक डेमोक्रेटिकली हम चुनाव करते हैं, माने वी गिव दी जितना भी बड़ा स्टाफ हो उनको हम कुछ क्राइटेरिया देते हैं, उनके क्राइटेरिया के हिसाब से वो लोग खुद लीडर्स चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं. तो कैसे होता है कि अगर कोई 40 आदमी कोई एक आदमी को चुनता है तो वो उन पे भरोसा रखते हैं, कि वो कुछ रिलेशनशिप अच्छी होगी, उनको तभी चुना होगा, क्राइटेरिया होते हैं उनके. तो ऐसे 20 या 25 अगर बड़ी कंपनी होती है तो ऐसे 400 में से या 4000 में से हम 20-25 लोगों को चुन के इधर बुलाते हैं. वो लोग यहाँ सीखते हैं और फिर सेम वर्कशॉप वो लोग वहाँ जाके रिपीट करते हैं फॉर ऑल दोज हु हैव इलेक्टेड देम. सो बिकॉज देयर इज एन एक्सेप्टेंस, सो वो पास ऑन होता है. सो 20 लोगों से 400 लोगों तक, 400 से 4000 लोग तक ये पूरी सिस्टम हम देते. वी जस्ट डू वन वर्कशॉप and we give them a system by which they can influence as many people as they want to influence down the line. बस ये 2 चीज हम करते हैं और फिर ये कर सकते हैं. So this is agreeable to you, then it is done. हाँ, मैं वहाँ जाने वाला हूँ इस मंथ में. सो वहाँ के जो लीडर्स है उससे बात करूँगा. मुझे आपकी परमिशन चाहिए थी जो आपने अभी दे दी. या बिल्कुल बिल्कुल. So आपकी बहुत शुक्रिया. Oh yeah, thank you. And Shiva is going to be your contact person. She is our people person. So आप जहाँ बोलोगे वहाँ उड़ के जाके वो कुछ भी करते. So anything else, friends? Last evening, or else time for good night. Anurag ji. I think a lot of people ask. Any reflection? So I think अमृत भाई आज के हमारे स्पेशल गेस्ट थे और बहुत अरसे से हम तो आज ही मिले उनको. माया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, वो ज़्यादा उनके कांटेक्ट में थी. शिवा भी ज़्यादा उनकी तरह से जानती है. लेकिन हम आज का जो ओरिजिनल सेशन था फिलोसोफर किंग, उसकी 1 मिनट बात कर लेता हूँ. उनके रेफरेंस में भी था इसलिए. फिलोसोफर किंग वो प्लूटो जो सोक्रेटिस की जो परंपरा है, तो उनके लीगेसी थी पूरी, और रिपब्लिक करके उन्होंने एक पुस्तक लिखा है. और मार्कस ऑरेलियस की जो किताब हमने लॉन्च की, तो मार्कस ऑरेलियस के बारे में ये कहा जाता है, बहुत बढ़िया कोटेशन है उनका प्लूटो का, कि the states can only be happy if either rulers become philosophers or philosophers become rulers. ये बहुत बढ़िया, मैंने अभी पढ़ा, ये मेरी 2 महीने की ही आखिरी मंथ की ये खोज है. बहुत बढ़िया चीज़ है, सही, कितनी सही चीज़ है. तो ये पढ़ा मैंने, फिर हम जब प्लान कर रहे थे तो मैंने रखा कि इतने सारे लोग आ रहे हैं जो पावर पोजीशन पे है, तो हम ये एक सेशन रखते हैं फिलोसोफर किंग का और डिस्कस करते हैं कि पावर पोजीशन और ये कैरेक्टर, फिलोसफी, प्रिंसिपल सेंटर्डनेस, सब चीज़ें कितनी गहराई वाली है. सो वी डू कम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल इन एवरी सेक्टर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सेक्टर. हम लोग सब जानते हैं कि हर सेक्टर में सही लोग भी होते हैं, हर सेक्टर में गलत लोग भी होते हैं. तो गवर्नमेंट में ऐसे जिसको एनलाइटन और स्पिरिचुअल प्रकार के जो लोग कहे, वैसे बहुत कम लोग हमको मिलते हैं, होते हैं, और फॉर्चुनेट है हम कि हमको तो बहुत सारे मिलते हैं. तो हम अमृत भाई को ऐसे ही एक विद्वान, जिसको कह सकते हैं ज्ञानी कह सकते हैं, ऐसे इंसान की तरह हम पहचानते हैं. तो आपके रिफ्लेक्शन तो आपको अभी लेने पड़ेंगे. आई होप एवरीबडी विल नॉट माइंड स्पेंडिंग सम टाइम. ऐसा जैसा बोला ऐसा कुछ है नहीं मेरे बारे में. सबसे बड़ी चीज होती है जो यहाँ के जो 3 सूत्र हैं, जैसा विचार है वैसा ही बोलना है, वाणी है, और
वैसा ही एक्शन करना है, उसकी एक सूत्रता होनी चाहिए, जो मेरे ख्याल से हर रिलीजन में बड़े बड़े विचारक, थिंकर, इन सब की भी यही बात है। और बड़ी बड़ी बातें भी सब लोग करते ही हैं, लेकिन वो जीने का जज्बा वो बहुत कम लोगों में होता है, उसमें से आप लोग हैं। तो हम तो आपके सिवा आपके आगे कुछ नहीं है। पहली बात, ये जो सब्जेक्ट अभी बताया फिलोसोफर किंग, तो मुझे भी बताया गया था कि आपको एक पैनल में रहना है, तो मैंने शिवाजी को भी बताया था। करीबन 30 साल हो गए, शायद 30-35 साल हो गए। उस वक्त बड़ा यंग था मैं, उस वक्त मैंने ये पढ़ा था, एक प्लेटो वगैरह का रिपब्लिक और ये एक संकल्पना। तो पहले मैंने सोचा कि ये लोगों ने यही रखा है या और कोई सब्जेक्ट रखा है, तो मैंने वैसे ही पोक किया है सोनी को, माया बहन को। तो उन्होंने बोला, फिर इनसे बात हुई तो उन्होंने बोला हाँ अमृत भाई वही बात है। और ये शिवा ने मुझे बताया, मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि आप 30 साल से इस चीज को जानते हैं, कितने कैसे इंसान हो गया आप ये चीज को जानते हैं। ऐसे जानना बहुत सामान्य, कोई इंफॉर्मेशन है, उसको जीना, उसको जीवन में एक्ट करना, वही बड़ी बात है ना। गांधी और हम में, हमारे जैसे इंसान में तो एक ही फर्क है ना, उसमें दूसरा क्या है। उनके जैसे तो बहुत लॉयर्स हैं, उनसे भी ज्यादा दिमाग वाले लोग हैं, लेकिन वो जीना वो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो है, पावर पोजीशन में जो लोग बैठते हैं, किसी भी प्रकार की पावर, किसी के पास फाइनेंशियल पावर है, कोई प्रिंसिपल है, मैं मान लो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, तो उसमें फिलोसॉफिकल माइंड रखना, या तो हर एक व्यक्ति साउल में सबके जो इसमें भी दिखाया है वो 3 चीज होती है, एपेटाइटिजिंग होता है, रेशनलिज्म और वो स्पिरिट होता है। तो उसमें जो रेशनलिज्म का जो बात बताना ज्यादा रखना चाहिए, वो सब हम अपने जीवन में करने के, आप तो पूरी मूवमेंट कर रहे हैं, हम लोग तो छोटी छोटी उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन हम सब लोग भी यही अपने जहाँ पर है जितना भी कर पाए वही बहुत बड़ी चीज है। मुझे लगता है मुझे काफी ज्यादा, मेरी औकात से ज्यादा आपने सम्मान दिया है। आई एम ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू। ओके दोस्तों, तो रात हो गई है, सोने का वक्त हो गया है, लाइट्स ऑफ। So with that note, let us end the day. Thank you so much. Thank you very much.